morning. Okay, so let's start our today's class. What we have completed yesterday? हमने कल क्या कंप्लीट किया था? LGBT. Different types of populations. Which populations we have studied? Homeless, LGBT, Homeless, LGBTQIA group. Then uninsured, insured, yes, underinsured, yes. Then better individual and victims of abuse or neglect. yes. intellectual disabled individual, Intellectual disabled population or people. Okay, so let's do a quick revision of our previous class. Yesterday we have completed healthcare considerations for minority groups. So what are the healthcare considerations? Any points that you can remember or recall? disparity. They are at high risk of healthcare disparities. So we have to avoid that. Minority group person information and confidence in the How? There is no regarding anything regarding abuse. What are the healthcare considerations? communication, Yes. Main problem is language barrier. So whenever there is a person or patient of minority group, you will require professional interpreter, not the interpreter of their family member or friends or any nursing staff. Then minority group by preventive care yes. medicine નું કીધું હોય proper take ના કરાય જતા follow up માટે ના Yes. Then proper education provide કરી શકે related to what? diet and exercise and lifestyle changes like It depends. Health education will depend on the common disease problem. अगर आपको एग्जाम में स्पेसिफिक दिया है कि आपका पेशेंट ये स्पेसिफिक पॉपुलेशन का है, सो यू हैव टू रिमेम्बर कि उन लोगों में क्या प्रॉब्लम ज्यादा है, तो आप हेल्थ एजुकेशन किस पर ज्यादा दोगे. अंडरस्टूड? सो हेल्थ एजुकेशन डिपेंड्स ऑन द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स. इसमें जनरलाइज दिया है सारी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग डाइट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल्स एंड प्रिवेंटेबल डिजीज, इन्फेक्शियस कम्युनिकेबल डिजीज सारा दिया है. बट इन एग्जामिनेशन आपको देखना है कि आपको कौन सी कम्युनिटी, कौन सी पॉपुलेशन स्पेसिफिक दी गई है. यू विल बी आस्क्ड लाइक योर पेशेंट बिलोंग्स टू दिस पॉपुलेशन एंड व्हाट हेल्थ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट टू योर पेशेंट. तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये डिजीज कॉमन है, सो मुझे ऐसा ही हेल्थ एजुकेशन देना है. देन व्हाट इज द बेस्ट वे कि पेशेंट को पता चला या नहीं? teach back method टीच बैक मेथड. टीच बैक मेथड से you have to tell the patient कि teach me back और explain me back, demonstrate me back. then next group हमने कौन सा देखा था? LGBTQ ग्रुप. तो उसमें क्या होता है? कौन से प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेंगे? क्यों वो नहीं जाते? लैंग्वेज बैरियर इज नॉट देयर. STI Yes, they don't take healthcare access due to the stigma that people will judge them. So whenever you expose to a patient, you have to care that patient in a non-judgmental approach. Yes, we don't have to judge them. We have to care. We have to treat them. We have to call them in a welcoming manner. हमें welcoming gesture से उन्हें बुलाना है, care करनी है. Then उनमें कौन सा रिस्क ज्यादा है? Which are the common health problems? STI. Then cervical cancer, testicular cancer, breast cancer, and suicide Prostate. depression, Yes. suicide. Yes, mental disorders like depression and suicide. These are the concerns. और
इट इज मोस्ट लाइकली टू हैपन जो एडोलेसेंस है, जो यूथ है LGBTQ ग्रुप के, उनको बुली किया जाता है, उनको थ्रेटन, डराया धमकाया जाता है, उनको इंजर किया जाता है, मार मार के ऐसे अब्यूज करके रेप किया जाता है. सो दिस आर द विक्टिम्स ऑफ दिस. उन्हें फैमिली फ्रेंड्स सब लोग रिजेक्ट कर देते हैं. दे डोंट हेल्प देम, दे डोंट सपोर्ट देम. फिर व्हाट इज द रेड इम्पोर्टेंट पॉइंट? એમના ફેમિલી મેમ્બર કે કોઈ જે ઓલ્ડ એજ હોય ત્યારે સપોર્ટ મળી નહોતું અને બીજું એ કે અમને જે ગવર્મેન્ટ તરફથી જે બી સ્પાઉસનું જે પેલું મળવું જોઈએ ફંડ, એટલે ફાઇનાન્શિયલ બી એમને પ્રોબ્લેમ હોય છે. Yes. Online students? जो LGBTQIA वाले पॉपुलेशन के लोग होते हैं, एल्डर एज में जब वो ओल्ड हो जाते हैं या फिर डिसेबल्ड हो जाते हैं तो कोई होता नहीं है उनकी केयर करने के लिए. सो दिस इज वन प्रॉब्लम. एंड अनदर प्रॉब्लम, दे डोंट हैव सर्टेन बेनिफिट्स लाइक स्पाउसल डेथ बेनिफिट. अगर उनके पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे, फाइनेंसेस मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी. एंड there is also a problem with the healthcare facilities, healthcare expenses वो खुद से कर नहीं पाएंगे. So this is the problem. Then healthcare consideration आपको क्या रखना है ध्यान में? નોન જજમેન્ટલ પછી અમે એન્ટ્રી કરીએ એ રીતનું આપણે પેલું રાખવાનું. नॉन जजमेंटल वेलकमिंग जेस्चर से आपको केयर करनी है. देन हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कैसे पता चलेगा कि ये LGBTQ ग्रुप में भी कौन सा मेंबर है? એડમિશન ફોર્મ હોય ને એમાં જે મેલ ફિમેલ પ્લસ અધર હોય તો અધરમાં બે એમનું લિસ્ટ આઉટ કરેલું હોય. हाँ, you have to ask them कि what is your gender orientation और sexual orientation. आपको वो भी पूछना होगा कि how should I call you, by which pronoun you would like to be addressed. ऐसे क्वेश्चन करने होंगे. एंड हॉस्पिटल के जो फॉर्म होते हैं उसमें सिर्फ मेल और फीमेल नहीं होना चाहिए, अदर्स होके ब्लैंक होनी चाहिए. सो वो अपना जेंडर कौन सा है वो आप वो डिस्क्राइब कर सके. देन પછી એમના जो भी उनके कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग आप हेल्थ उनकी प्रमोट करने का ट्राई करोगे. देन नॉन ऑक्यूपेशनल पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, व्हाट इज दैट? નોન ઓક્યુપેશનલ એટલે ઓક્યુપેશન વગરનું પેલું હોય એ પ્રોબ્લેમ. જે ઓક્યુપેશન હોય નર્સ અને જે હોય એમના दिस બંને इज स्पेसिफिक फॉर HIV. जो ऑक्यूपेशन के रिगार्ड ऑक्यूपेशन उनके काम की वजह से होता है, दैट इज ऑक्यूपेशनल पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस. बट उनका काम नहीं है ये सब, फिर भी उनको HIV हुआ है. सो दिस आर कॉल्ड एज नॉन ऑक्यूपेशनल पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस. वो कांटेक्ट में आ गए हैं, HIV के कांटेक्ट में आ गए, एक्सपोजर हो गए, दैट इज पोस्ट एक्सपोजर. और उसके बाद आप प्रोफाइलेक्सिस दिस आप एंटी रेट्रोवायरल मेडिसिन और वैसा सब स्टार्ट कर देते हो. तो इन लोगों को करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ हाई रिस्क ऑफ પેલું STI. यस. देन दूसरा क्या ध्यान रखना है? ટ્રાન્સજેન્ડર ऑनलाइन स्टूडेंट्स विल स्पीक. चलो, टुडे वी हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर. ऐसे कंप्लीट नहीं होगा फिर. ટ્રાન્સજેન્ડર હોય એ ટેકિંગ હોર્મોન થેરાપી કન્ટિન્યુ લેતા હોય એટલે એમને કન્ટિન્યુ મોનિટર કરવું જોઈએ. એમને કોમ્પ્લિકેશન થાય સચ એઝ કે પોલિસાઇથેમિયા, ટેસ્ટોસ્ટેરોન ના પ્રોબ્લેમ્સ થાય એ ડિટેક્ટ કરવા જરૂરી છે. यस. अगर कोई भी ट्रांसजेंडर पर्सन है, हार्मोनल थेरापी ले रहा है, सो वी हैव टू मॉनिटर देम फ्रीक्वेंटली. एक एग्जांपल दिया था कि अगर कोई पर्सन एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ले रहा है तो उसको पॉलीसाइथेमिया हो सकता है. सो वी हैव टू डिटेक्ट दैट अर्ली एंड ट्रीट दैट अर्ली. फिर स्क्रीनिंग के बारे में क्या था? कैंसर के स्क्रीनिंग. બાયોલોજીકલી એની જે હાલ આઈડેન્ટિફિકેશન બની ચેક. यस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स? બોથ જેન્ડર ના માટે સ્ક્રીનિંગ કરવાનું. यस. अगर वो ट्रांसजेंडर है और उसने रीअसाइनमेंट सर्जरी की है, लाइक मेल टू फीमेल है या फीमेल टू मेल किया है, बट वी हैव टू स्क्रीन फॉर बोथ द ऑर्गन्स. अगर फीमेल में से मेल हुआ है फिर भी हमें ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करना है. और मेल में से फीमेल हुआ है फिर भी हमें वो करना है. टेस्टिक्युलर का भी स्क्रीनिंग करोगे बिकॉज बायोलॉजिकली द पर्सन वॉज डिफरेंट. सो वो उसका भी चेक करना है. आफ्टर सर्जरी द पर्सन हैज डिफरेंट जेंडर, सो उसका भी एग्जामिनेशन करना है. सो इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द जेंडर्स. देन नेक्स्ट कौन सा ग्रुप हमने देखा था? पॉपुलेशन होमलेस. So
होमलेस में क्या था? कोई भी बैकग्राउंड से आया करो, फैमिली ने बजे अपना काटी बहुत बड़े लोग होमलेस के लिए हैं। उनमें इन्फेंट जो होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होती है? होमलेस वाले LBW वाले बॉर्न होते हैं, सो उसकी वजह से मेंटल ડાય થઈ જાય यस विद इन 12 मंथ्स उनकी डेथ हो जाती है, बिकॉज प्रॉपर मदर ने न्यूट्रिशन ही नहीं लिया था ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड आफ्टर बर्थ भी पेशेंट जो बच्चा था वो LBW का था। देन चिल्ड्रन में क्या देखने को मिलेगा? Continuous asthma and efficiency. यस फ्रीक्वेंटली, एक तो पहले वो बीमार होता रहेगा, फिर उसको एज्मा हो जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी, लीड पॉइजनिंग, माल नरिश्ड होगा, GI इलनेस, बिहेवियरल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स होगी। यूथ में क्या प्रॉब्लम्स होगी? अल्कोहल નો કરો risk taking behavior ले પછી कौन से रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स? अल्कोहल यूज ड्रग પછી प्रोटेक्शन अल्कोहल अब्यूज, ड्रग अब्यूज, देन ડિપ્રેશન डिप्रेशन, सुसाइड, STI. STI ड्यू टू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटीज, यस, एंड अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज भी यूथ में कॉमन है जो होमलेस पीपल है। विच आर द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर ऑल होमलेस पीपल? फोर्स बाइट, फ्रॉस्ट बाइट, डेंटल प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम, इन्फेक्शन के બધા जो मेंटल में भी प्रॉब्लम है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Malnutrition, skin yes, Lung Yes. disease, lung diseases like, pneumonia, TB, bronchitis, yes, mental health, yes, mental health related problems. Next, substance abuse. substance abuse. substance abuse, wounds and skin infections. These are the common problems. What are healthcare considerations? पहले तो आप क्या करोगे? पेशेंट का आइडेंटिफाई करो, पहले पेन નો જે પ્રોબ્લેમ है એ અસેસ કરો। not every time there will be pain, so there is a word, reported symptoms. फर्स्ट Yes, you have to always focus on reported symptoms. जो होमलेस पीपल है वो जो कंप्लेन लेके आए हो उन पर पहले फोकस करो, अदरवाइज दे विल नॉट एडर टू द फॉलो अप, रिविजिट नहीं करेंगे आपके पास। देन जो भी उनके कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स है, हमें पता है कि होमलेस में कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स है, सो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज प्रेजेंट और नॉट, और अगर नहीं है सो वी हैव टू प्रिवेंट देम, एंड अगर है सो उसको ट्रीट करने का ट्राई करना है। देन one important thing that you have to remember regarding medications, એ ના લે Safe medication prescribed. certain medications like जिसका अब्यूज हो Abuse सकता है, होएगा। ओपियोइड, सिडेटिव्स, ऐसे जो मेडिसिन है, वी हैव टू अवॉइड सर्टेन मेडिसिन इन होमलेस पीपल। बाय व्हाट इज द रैशनल? એ લોકો અબ્યુઝ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે। देयर इज अ रिस्क ऑफ अब्यूज, वो मेडिसिन का अब्यूज करेंगे, दैट्स व्हाई। सो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। देन हमने नेक्स्ट ग्रुप देखा था सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड इंडिविजुअल्स। उनमें क्या प्रॉब्लम होता है? સોશિયલી અને ઇકોનોમિકલી સ્ટેટસ મેન્ટેન ના હોય हम्म એમનામાં હેલ્થ પ્રોબ્લેમ જોવા મળે। क्यों देखने को मिलता है? बिकॉज दे लैक ऑफ फाइनेंसेस एंड सोशल रिसोर्सेस। वो क्या करेंगे? हॉस्पिटल जाएंगे ही नहीं स्टार्टिंग में, अगर कुछ डिजीज होता है तो अर्ली वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ सोशियो एंड इकोनॉमिक स्टेटस। तो उसकी वजह से क्या होगा? वो प्रिवेंटेबल स्टेज में से और प्रोग्रेस हो जाएगा एंड क्रोनिक डिजीज में ट्रांसफर हो जाएगा। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। और उनके जो चाइल्ड होते हैं जिसकी फैमिली सोशल रिसोर्सेस नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेस अच्छे नहीं है, तो वो जो बच्चे होते हैं उनमें भी अफेक्ट होता है, बट वो पता कब चलता है? देन हाँ, जब वो एडल्ट हो जाते हैं लेटर इन द लाइफ उन्हें पता चलता है कि दे आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज। हेल्थ केयर कंसिडरेशन क्या ध्यान रखनी है इनमें? જે પેલું સોશિયલ સર્વિસીસ હોય એમને હેલ્પફુલ થાય કરવાનું, પછી નર્સને એમના પ્રોપર અસિસ્ટ કરવાનું, ટ્રીટમેન્ટ આપવાની, અને કોઈ બી સોશિયલ પ્રોગ્રામ હોય તો એમાં આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના જોડે। यस, और उनमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी ज्यादा है। वी हैव टू कनेक्ट देम विथ सोशल वर्क सर्विसेज।
उनके पास सोशल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल वर्कर्स और एनजीओज है, तो आपको उनको लिंक करके देना है कि दिस आर द प्रोग्राम्स, फ्रॉम दिस यू कैन गेट सर्टेन बेनिफिट्स, तो आपको ऐसे लिंक करके देना है। और उनमें रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज्यादा होता है, बिकॉज सोशल रिसोर्सेज भी नहीं है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं है, सो उसके चक्कर में दे विल टेक सर्टेन रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स। सो ये आपको ध्यान रखना है। देन वी हैव सीन अनइंश्योर्ड एंड अंडर इंश्योर्ड इंडिविजुअल्स, उसमें क्या था, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ड्यू टू लो इनकम से uninsured अंडर इंश्योर यस, लो इनकम की वजह से या तो उनके पास इंश्योरेंस होता नहीं है, या फिर होता है तो कम कवरेज वाला होता है, कम अमाउंट वाला होता है। सो ड्यू टू दिस रीजन दे डोंट गो टू द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। वो हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, वो लोग सोचेंगे कि हाउ वी विल मैनेज, सो वो हॉस्पिटल जाना ही अवॉइड करते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज नहीं लेते। बट उनके लिए एक ऑप्शन है, जो लो इनकम वाले हैं उनके लिए क्या ऑप्शन है, मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकेड। Medicaid, that is run by the, it is a governmental insurance, पर उसमें पता होना चाहिए कि जो भी पर्सन मेडिकेड के लिए अप्लाई कर रहा है वो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, लाइक उसकी इनकम इतने से कम होनी चाहिए, दिस मच डिजीज कंडीशंस आर नॉट कवर्ड, सो ऐसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल होगा तो उसको मेडिकेड मिल सकता है। देर आर अदर इंश्योरेंस, कॉमर्शियल इंश्योरेंस आर ऑल्सो देर, बट वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा बिकॉज उसके जो ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। सो रिस्क फैक्टर्स क्या है, हमने जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पीपल में देखा था वही होता है कि उन लैक ऑफ ट्रीटमेंट, अच्छे से फूड कंज्यूम नहीं करेंगे, जो चाइल्ड होते हैं उनको भी अर्ली एज से डिजीज हो जाते हैं, प्रिवेंटेबल डिजीज वो ट्रीट नहीं करते, उसकी वजह से क्रोनिक डिजीज हो जाएगा। हेल्थ केयर कंसिडरेशन आपको क्या ध्यान रखना है, सो यू हैव टू लिंक देम, आपको उनको लिंक करके देना है। सोशल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज का आप कॉन्टेक्ट करवा सकते हो कि वो मेडिकेड के लिए अप्लाई कर सके, एंड दे गेट लिटिल बिट ऑफ इंश्योरेंस की जिससे उनको सेफ्टी रहे, लाइक हॉस्पिटल में जाके फाइनेंसेस ना पे, बिल पे ना करना पड़े। देन वी हैव सीन नेक्स्ट ग्रुप, दैट इज इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स। इसमें क्या प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, डिसऑर्डर इन मोबाइल जो पण मेंटल रिलेटेड हो। पहले तो इनको डिजीज प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, डिजीज कंडीशन डिसऑर्डर कोई आइडेंटिफाई कर पाओगे आप? व्हाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, व्हाई टुडे यू आर नॉट स्पीकिंग? कल आपने पढ़ा नहीं था? आई डोंट, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द मेन बैरियर। एक तो पहले उनसे इंफॉर्मेशन निकलना, दैट इज अ मेजर टास्क, इट इज अ चैलेंजिंग टास्क, उनको पता भी नहीं होगा, वो आंसर भी नहीं करेंगे, सो उनसे इंफॉर्मेशन निकालने में आपको बहुत टाइम लगेगा। सेकेंड, आप डिसऑर्डर आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, व्हाई? एटिपिकल सिम्टम्स। एटिपिकल सिम्टम प्रेजेंटेशन की वजह से उनको जो डिजीज है वैसे सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, पर्टिकुलरली कैसे सिम्टम्स दिखेंगे अगर कोई डिसऑर्डर हुआ है तो, बिहेवियरल रिलेटेड डिसऑर्डर, Behavioral sense. हाँ बिहेवियर चेंज हो जाएगा। सो इट इज इम्पोर्टेंट दैट वी शुड नो कि अगर पेशेंट का बिहेवियर ऑल्टर हुआ है, सो इट इंडिकेट देयर इज समथिंग एबनॉर्मल। और कॉमन प्रॉब्लम्स क्या होंगे उनमें, व्हाट आर द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स? स्लीपिंग प्रॉब्लम्स है, जैसे जीआई नो प्रॉब्लम, मीडिया, यस, जैसे constipation, ईईआर oral health problem, motor deficit, epilepsy, allergy, otitis media, GERD, dysmenorrhea, sleeping problems, mental health related problems, vision and hearing impairments, constipation and oral health problems. You have to remember these things. और आपको एग्जाम्पल दिया था कि कोई भी डिजीज कंडीशन होगा सो बिहेवियर चेंज होगा। सो व्हाट आर द नर्सिंग हेल्थ केयर कंसिडरेशंस, आपको क्या करना है, पहले सेफ्टी इज अवर प्रायोरिटी, फिर functional behavior I am able assess करो। yes, it is our duty, we have to be aware कि उनको जो भी प्रॉब्लम है सो उसमें बिहेवियर चेंज होगा। सो ऑल्टर बिहेवियर से ही आपको मैनिफेस्ट करना है कि पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम है, और पहले क्या ट्रीट करोगे आप, उसका बिहेवियर ठीक करोगे पहले, मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन, बिकॉज उसकी वजह से ही उसका बिहेवियर चेंज हुआ है। सो फर्स्ट ट्रीट दैट मेडिकल कंडीशन, ऑटोमेटिकली बिहेवियर ठीक हो जाएगा।
But if it is not recovering, so then पहले medical condition treat करनी है, then you have to focus on behavior और behavioral interventions आपको करनी है. फिर battered individuals and victim of abuse and neglect, वो हमने देखा था. What is the really important point? આપણે પહેલા વાળી જે first point contact કરવાનો ये આપણે જોડે બેઠા તો abuse થયું છે. Online students? Healthcare professional first contact mass. Yes, we are the first person जो हम पहले कांटेक्ट करते हैं. जो भी ऐसे विक्टिम्स हैं उनके कांटेक्ट में हम पहले आते हैं. फिर हमने इसमें क्या देखा था? abuse हो तो abuse करता હોય abuse થતો હોય जो चाइल्ड है उसका बचपन में अगर अब्यूज हुआ है इन अ चाइल्डहुड पीरियड, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कैसे होंगे? लॉन्ग लास्टिंग होंगे. जब वो बड़ा हो जाएगा तब भी उसमें वो चेंजेस, बिहेवियरल डेवलपमेंटल चेंजेस उस चाइल्ड में देखने को मिलेंगे ड्यू टू द चाइल्डहुड अब्यूज. जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था वो लास्ट तक वो कैरी करता रहेगा. सो अब्यूज की वजह से फिजिकल सिम्टम्स, सोमेटिक सिम्टम्स, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, सेक्सुअल, प्रेगनेंसी रिलेटेड इफेक्ट सिम्टम्स सब देखने को मिलेंगे. जो भी चिल्ड्रन है बर्थ से लेके 1 ईयर तक के हैं, उनमें क्या ज्यादा कॉमन है? Maltreatment. माल ट्रीटमेंट और निग्लेक्ट. पेरेंट्स ध्यान नहीं देते व्हाट आर द नीड ऑफ दैट चाइल्ड, और वो सब ध्यान नहीं देते. सो वो बहुत रिस्क पर है माल ट्रीटमेंट और निग्लेक्ट के. क्यों? व्हाट इज द रीजन? क्यों उन पर निग्लेक्ट, ध्यान नहीं दिया जाता और अच्छे से केयर नहीं की जाती? socio-economical status, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वो लो होगा तो अच्छे से कैसे उसकी नीड पूरी होगी? सेकेंड रीजन इज Behavioral. variation, पेरेंट्स का बिहेवियर. यस, पेरेंट्स का बिहेवियर ही अच्छा नहीं है. पेरेंट्स बिहेवियरल इश्यू, उसकी वजह से चाइल्ड पर ये रिस्क ज्यादा है. यस. सो अगर जो भी विक्टिम्स है जिसने अब्यूज एक्सपीरियंस किया है, सो कैसे पता चलेगा? व्हाट आर द साइंस? बोन टूटे गेला हो Bruise. ब्रूसिस, यस. Sprain. स्प्रेन, Bone fracture. फ्रैक्चर, यस यस. ब्रीथिंग डिफिकल्टी Fatigue. chronic fatigue, shortness of breath, muscle tension, involuntary shaking. પછી સ્લીપિંગ પેટર્ન મેન્ટેન ના રહેતી हाँ, changes in eating and sleeping pattern, પછી sexual dysfunction and fertility issues. These are the signs. और mental health issue कौन से होंगे उनमें? अगर कोई ऐसे जो है पर्सन जिसने एक्सपीरियंस किया है, they are the victims, तो उनमें PTSD. फर्स्ट तो PTSD होगा. यस. देन Depression. डिप्रेशन, nightmares. Anxiety. Yes. Abused alcohol, network substance. Yes, अल्कोहल और सब्सटेंस अब्यूज करेंगे वो लोग. low self-esteem, Low self-esteem and uncontrollable thoughts. So these are the mental health problems. Feeling of hopelessness भी उनको लगेगा. जो भी चाइल्ड ने विटनेस किया है वायलेंस, तो उनमें फियरफुलनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वो सब ज्यादा रहेगा. स्कूल एब्सेंटिज्म ज्यादा रहेगा. लैक ऑफ अटेंटिवनेस भी उनमें ज्यादा होगा. हेल्थ केयर कंसिडरेशन आपको क्या ध्यान रखनी है? फर्स्ट, इनमें भी सेफ्टी इज अवर प्रायोरिटी. सो कैसे सेफ्टी? इन व्हाट टर्म्स ऑफ सेफ्टी? जो इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स थे उनमें इंजरी के रिस्क ज्यादा थे. दैट्स व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग सेफ्टी. इनमें सेफ्टी क्यों देना है? हाँ, फिर से उनके साथ अब्यूज ना हो. इन दैट मैनर यू हैव टू प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट. तो कैसे दोगे सेफ एनवायरनमेंट? कोई भी सेफ प्लेस की इंफॉर्मेशन आपको या तो कोई सेफ पर्सन का कांटेक्ट नंबर. यस, वी विल प्रोवाइड द कांटेक्ट कि वेर व्हाट इज द सेफ प्लेस टू लिव. अगर आपके पास फिर से ऐसा होता है तो कहाँ पर जाना है, विच पर्सन यू हैव टू कॉन्टेक्ट, किसकी हेल्प लेनी है. सो इन दिस मैनर यू हैव टू प्रोवाइड अ सेफ एनवायरनमेंट. फिर जो भी विक्टिम्स है उनको कैसे ट्रीट करोगे आप? विथ रिस्पेक्ट. यस, रिस्पेक्टफुली, विथ अ कंपैशन. देन જે બી અબ્યુઝ થયો આપણો રિપોર્ટ કરવું જોઈએ. it is our duty to report the abuse. If patient is telling you not to report, then સમજાવવાનું તમારી ઇન્ફોર્મેશન એકદમ કોન્ફિડન્સ છે રિપોર્ટ કરો તમારા કઈ બી બનાવવા અપેક્ષ નહીં. yes, we have to explain the patient that it is my duty, I have to report. From this reporting you will not get affected, आपको कोई harm नहीं होगा. Your information will be confidential, but I have to report further. So
आपको पेशेंट को काम डाउन करना है। देन पेशेंट को इंजरीज हुई है, सो यू विल ट्रीट दैट इंजरीज, ड्रेसिंग करोगे, पेन मेडिसिन दोगे। अगर बहुत फ्रैक्चर हो गया है तो असिस्टिव डिवाइसेस भी देना पड़ेगा। फिर हेल्थ एजुकेशन दोगे, किस पर एजुकेशन दोगे? आई अब्यूज के तो हमने एग्री हुई है तो बच्चों को सपोर्ट सेल्फ मैनेजमेंट कैसे करना है, एंड सेफ्टी कैसे सीख करोगे नेक्स्ट टाइम। इमोशनल सपोर्ट भी देना पड़ेगा पेशेंट को। फिर अगर जो चाइल्ड है जो निग्लेक्ट का शिकार हुआ है, तो उसके पेरेंट्स को एजुकेट करना पड़ेगा कि कैसे आप ये प्रिवेंट कर सकते हो। अगर फाइनेंशियल स्टेटस लो है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लो है, सो यू हैव टू प्रोवाइड सपोर्ट प्रोग्राम्स, जो सपोर्ट ग्रुप्स है जो आपको हेल्प करेंगे। सो वो सब आपको देना है, एंड अवेयरनेस फैलानी है रिलेटेड टू बैटरिंग, अब्यूज और निग्लेक्ट, ये सबके रिगार्डिंग आपको अवेयरनेस फैलानी है। एनी डाउट इन दिस? Yes or no? No one. So why you are not speaking? डाउट नहीं था तो कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा था? जितना आप रीड करोगे, आई कैन अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, बट जितना आप कंटिन्यूअसली रीडिंग करते रहोगे ये चैप्टर का, उतना आपको याद रहेगा। इफ यू डू नॉट रिकॉल दिस थिंग्स, यू विल फॉरगेट दिस थिंग्स, सो यू हैव टू कीप रिकॉलिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, तभी आपको याद रहेगा। देयर इज नो एनी अदर वे। नेक्स्ट टॉपिक इज सिंगल पेरेंट्स। सिंगल पेरेंट्स की वजह से क्या प्रॉब्लम होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, लेट्स सी। अ नर्स शुड एस्टेब्लिश अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप विद द क्लाइंट and encourage the single parent to express any concerns and needs about single parenting. This information will assist the nurse in identifying appropriate resources for the client. जब भी कोई पेशेंट आपके पास आता है, अगर वो सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट मीन्स हाँ, स्पाउस इज नॉट देयर, एक ही सिंगल पर्सन चाइल्ड की केयर कर रहा है, वेदर इट इज फीमेल और मेल। इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो फीमेल ही होगी, मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकती है, बट दे आर सिंगल पेरेंट। सो जब भी पेशेंट आपके पास आता है, आपको एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप दोनों के बीच में एस्टेब्लिश करना है। एंड जो भी सिंगल पेरेंट है, जो पेशेंट है, उसको एनकरेज करना है कि आपके जो भी कंसर्न्स है, आपको जो भी लाइक फीलिंग्स है रिलेटेड टू सिंगल पेरेंटिंग, जो भी आपको चिंता है, प्लीज शेयर विथ मी। इस इंफॉर्मेशन से क्या होगा, नर्स को पता चलेगा कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, एंड कौन से रिसोर्सेस पेशेंट को आपको देने हैं, कैसे आप पेशेंट को हेल्प करोगे। सो ये इंफॉर्मेशन से आपको पता चलेगा। Initiating access to community organizations can assist in alleviating some burden and in providing needed services such as child care, food security, health care including immunizations and employment. आपको कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस है, लाइक मैंने जो बोला था, और नॉन एनजीओज है, सोशल वर्कर्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, तो ऐसे सारे ऑर्गेनाइजेशंस का एक्सेस प्रोवाइड करना है, उनको बताना है कि यू कैन टेक देयर हेल्प। उससे क्या होगा, जो सिंगल पेरेंट है उसका बर्डन कम हो जाएगा, उसको चाइल्ड केयर कैसे करनी है उसके रिगार्डिंग हेल्प मिल जाएगी। फूड के लिए अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाता है, सिंगल पेरेंट है, दे हैव टू डू द वर्क, चाइल्ड केयर दोनों साथ में करना है, सो दैट इट माइट दे माइट फेस प्रॉब्लम। सो फूड के लिए कैसे सिक्योर फूड मिल सकता है, हेल्थ केयर अच्छे से मिल सके उनके चाइल्ड को, लाइक इम्यूनाइजेशन भी उनको अच्छे से मिल सके, एंड एम्प्लॉयमेंट, जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं उनको जॉब भी दे सके। अगर जॉब ही नहीं है, सो चाइल्ड की केयर कैसे करेगा वो पर्सन, सो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर सके। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को आपको कॉन्टेक्ट करके देना है। The nurse may need to assist a single parent to address the child's sexual development, especially those with a child of opposite sex. Yes, this is a common problem. For example, a male is a single parent and the child is a female. Daughter है, एक father है और उसकी daughter है. So father will be not aware कि उसकी daughter का sexual orientation कैसा है, at what age she will get her प्यूबर्टी, मेनार्की कब होगा, सो उससे पता नहीं होगा। सो हमें उनको एड्रेस करना है कि दिस कुड हैपन। जो भी ऑपोजिट सेक्स वाले चाइल्ड होते हैं सिंगल पेरेंट्स के, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है, बिकॉज उनको पता नहीं है कि इनमें क्या चेंजेस होगा क्या नहीं होगा। दे ऑल आर नॉट रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, सो उनको पता नहीं होगा। सो आपको उनको वो ये नीड है उसमें हेल्प करनी होगी। अगर फीमेल है, मदर है और उसका चाइल्ड सन है, तो उसमें भी ये सेम प्रॉब्लम्स होंगे, तो आपको उनको हेल्प करनी होगी इसमें।
Preventive screenings are important in this population due to risk factors and the negative effects of stress from single parenting. Yes, सिंगल पेरेंटिंग की वजह से उनमें स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है. उनको एक ही बात का स्ट्रेस होता है कि मैं कैसे मैनेज करूंगी या करूंगा, हाउ आई विल मैनेज टू अपब्रिंग माय चाइल्ड. सो उनमें स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं. स्ट्रेस इज द मेन कंसर्न इन दिस स्पेशल ग्रुप. सो आपको उनको प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग करना है कि पहले से ही आप ध्यान रखो कि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट इज foster children. Foster children means, so what is that? What is foster care? Yes, you are correct. Foster care માં જે હોય children એ, but what is that? Foster care means Adopted. nearer to the answer, but not adopted. આ પેલું તો નહીં જે બાયોલોજીકલ પેરેન્ટ્સ હોય પછી જે કસ્ટડીમાં જે ચિલ્ડ્રન ને એક્સેપ્ટ ના કરે No, no, no. એવું હોય. બચ્ચું ખોવાઈ ગયું કસ્ટડી રાખવામાં આવે. हाँ, somewhat like that. For example, let me give you one example. एक चाइल्ड है जिसके दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई है, तो चाइल्ड कहाँ जाएगा? दोनों पेरेंट्स नहीं है, सो कहाँ जाएगा? ऑर्फनेज में जाएगा. सो टेम्पररी पीरियड के लिए वो चाइल्ड की कस्टडी किसके पास हो गई? ऑर्फनेज जो है उसके पास गई, गवर्नमेंट के पास गई. फिर वो चाइल्ड को कोई अडॉप्ट कर लेगा, सो वो परमानेंटली वो किसी और के पास चला जाएगा. सो टेम्पररी पीरियड के लिए, या फिर कोई अडॉप्ट ही नहीं करता, तो जब चाइल्ड कोई ऑर्फनेज में हो, फॉस्टर केयर में हो. फॉस्टर केयर मीन्स वहां पर सिर्फ बहुत सारे चाइल्ड होंगे जिनके कोई पेरेंट्स और गार्डियंस नहीं है केयर करने के लिए. अगर दोनों पेरेंट की डेथ हो जाती है तो उनके जो अंकल आंट है, जो ब्लड रिलेशन वाले थे मदर या फादर के, तो अगर वो ले लेते उनको अडॉप्ट कर लेते दैट इज गुड. बट अगर कोई है ही नहीं, सो वो चाइल्ड का क्या? सो वो सारे चाइल्ड्स को फॉस्टर केयर में डाला जाता है, टेम्पररी पीरियड के लिए वहां पर रखते हैं जब तक कि कोई उसको नया पेरेंट और नया गार्डियन नहीं मिल जाता. सो समवट यू कैन रिमेम्बर कि फॉस्टर चिल्ड्रंस मीन्स ऑर्फन चिल्ड्रंस है, उनकी बात हो रही है. सो आप उसको इजिली कंपेयर कर पाओगे. So needs that often go unmet for children in foster care include physical, mental, behavioral, and dental health. This increases the risk of health problems later in life. Foster care में मतलब कि orphanage में बहुत सारी ऐसी नीड्स होती है जो अनमेट ही रह जाती है बच्चों की. कितने सारे चाइल्ड होंगे, वो एक एक चाइल्ड पर थोड़ी ना ध्यान देंगे. सो फिजिकल उनको लाइक फिजिकल अच्छे से केयर नहीं मिल सकती, मेंटल, बिहेवियरल, डेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई केयर नहीं मिलती. उससे क्या होगा लेटर ऑन लाइफ में, जब वो बड़े हो जाएंगे तब उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स इश्यूज स्टार्ट होंगे. सम चिल्ड्रन इन फॉस्टर केयर मे हैव कॉम्प्लेक्स एंड क्रोनिक हेल्थ कंडीशन. कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं फॉस्टर केयर में, ऑर्फन एज में, कि उनको कोई कॉम्प्लेक्स और क्रोनिक हेल्थ कंडीशन होती है. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, हमें जब पीडियाट्रिक की पोस्टिंग दी गई थी, सो माय फर्स्ट डे वाज इन एन आईसीयू में था. एंड देयर वाज अ वन चाइल्ड जो ऑलरेडी ऑर्फनेज में था एंड हिज कंडीशन वाज सो क्रिटिकल. एक महीने से वो आईसीयू में था. सो वी हैव आस्क्ड कि इसका पेमेंट और वो सब कैसे हो रहा है, कौन केयर कर रहा है. देयर वाज नो वन टू सिट बिसाइड द चाइल्ड. वो चाइल्ड के साथ बैठने के लिए भी कोई नहीं था, कोई कोई केयर करने के लिए नहीं था. सो उन लोगों ने बोला कि ये ऑर्फन है ये चाइल्ड. सो ऑर्फनेज वालों ने अंदर यहाँ पर एडमिट करवाया. द पेमेंट इज डन बाय द गवर्नमेंट. जब तक वो जिएगा तब तक ठीक है, वरना उसकी डेथ हो जाएगी. सो some children are suffering from complex and chronic health problems in also in the foster care. So उन लोगों में बहुत प्रॉब्लम होता है और कोई ध्यान भी नहीं देता. What are the healthcare consideration for foster children? ऐसे जो children है उस पर क्या आपको ध्यान रखना है? Community resources are important for this population to facilitate the provision of health, safety, stability and permanence. आपको कम्युनिटी के रिसोर्सेस उनको प्रोवाइड करने होंगे जिसकी वजह से उनकी हेल्थ अच्छी हो, सेफ्टी अच्छी हो, स्टेबिलिटी अच्छी हो, परमानेंस अच्छे, मतलब उनकी परवरिश हो सके और अच्छा उनके साथ हो सके. Social workers must be included in the care of a foster child
to facilitate access to community resources. जब आप ऐसे चाइल्ड की केयर करते हो जो ऑर्फन है, देयर आर नो एनी पेरेंट्स और गार्डियंस, तो ऐसे पेशेंट में आपको सोशल वर्कर्स को इंक्लूड करना होगा कि वो केयर कम्युनिटी रिसोर्सेज कैसे यूज करना है, ये चाइल्ड के लिए कौन सी स्कीम अच्छी रहेगी, कौन से गवर्नमेंट के बेनिफिट अच्छे रहेंगे, सो वो लिंक कर सके. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू इंक्लूड सोशल वर्कर्स. Medically equipped homes may be needed as well as in-home nursing care services for those children with a complex or chronic health condition. Yes, this can also be done. जो भी नर्स जो होम है, फॉस्टर केयर होम्स या ऑर्फनेज होम्स, सो वो मेडिकली इक्विप्ड होने चाहिए, अंदर सारी चीजें होनी चाहिए. जब भी कोई अंदर बच्चा कोई बीमार हो जाए तो अंदर कुछ भी ट्रीटमेंट के लिए तो होना चाहिए ना. सो मेडिकली इक्विप्ड होम्स होने चाहिए, या फिर वहां पर इन होम नर्सिंग केयर, सारे ऑर्फनेजेस में या फॉस्टर केयर होम्स है उसमें नर्स होनी चाहिए, अंदर ही उनको नर्सिंग केयर सर्विसेज मिले, ऐसा होना चाहिए. जो भी कॉम्प्लेक्स बीमारी वाले हैं, क्रोनिक हेल्थ कंडीशन की लाइफ लॉन्ग उनको वो कंडीशन रहेगी. फॉर एग्जांपल एक जुवेनाइल डायबिटीज जो होता है, जो बचपन से ही डायबिटीज होता है, टाइप 1 टाइप का डायबिटीज, सो ये क्रोनिक कंडीशंस है. तो वहां पर अगर पेशेंट है, तो अगर नर्सेस वहां पर ही होगी, इन होम नर्सिंग केयर उनको मिलती रहेगी, तो दे विल बी स्टेबिलाइज्ड. Frequent health visits may be needed for children transitioning to and from foster care. जो बच्चे फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली ऑर्फन हो गया है एंड दे आर ट्रांजिशनिंग टू द फॉस्टर केयर, उनका फ्रीक्वेंटली हेल्थ विजिट करना चाहिए. जो भी नर्स है वो फ्रीक्वेंटली जाके चेक करेगी कि बच्चे का ध्यान अच्छे से कर रहे हैं, सारी हेल्थ केयर नीड्स उसकी मेट हो रही है या नहीं. सो वो फ्रीक्वेंटली विजिट करके चेक करना है. या फिर कोई बच्चा फॉस्टर केयर से किसी ने अडॉप्ट कर लिया, सो फॉस्टर केयर में से निकल गया, तो उसकी भी घर जाकर आपको रेगुलर विजिट करनी पड़ेगी कि वहां पर उसकी केयर अच्छे से हो रही है या नहीं. सो ये अगर ध्यान रखोगे, सो देयर हेल्थ विल बी गुड. अंडरस्टूड? Yes. ओके. नेक्स्ट ग्रुप इज इंडिविजुअल्स विथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. हमने पहले देखा था दे आर इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड, पर ये इंडिविजुअल्स कैसे हैं? दे आर हैविंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. Lifestyle choices, chronic health problems, psychotropic medication, tropic medications, limitations in access to healthcare and lack of preventive screening are concerns. जो भी मेंटली डिसेबल्ड पेशेंट होते हैं, जिनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, उनमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे? सो लाइफस्टाइल चॉइसेस, उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करनी है, कैसे हाइजीन करना है, उनको कुछ पता ही नहीं है. क्रोनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स भी उसमें ज्यादा होते हैं. साइकोट्रोपिक मेडिसिन भी वो लेते होंगे, साइकेट्रिक मेडिसिन, तो उसका भी प्रॉब्लम होगा. हेल्थ केयर फैसिलिटी में एक्सेस भी नहीं मिलेगा अच्छे से, और प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग भी उनका कोई होता ही नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट मेंटली फिट. सो दिस आर द मेन कंसर्न्स ऑफ दिस पॉपुलेशन. Side effects of psychotropic medication may contribute to an altered health states. Certain psychotropic medications can contribute to weight gain. जो ये साइकोट्रॉपिक मेडिसिन होती है, स्पेशली मेंटल हेल्थ पेशेंट्स जो होते हैं वो लेते हैं. सारी साइकेट्रिक मेडिसिन, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं. हमने ऑलरेडी स्टडी किया था फार्माकोलॉजी में कि ये मेडिसिन होती है, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होती है. सो उसकी वजह से उनका हेल्थ स्टेटस भी ऑल्टर हो जाता है. एंड सर्टेन मेडिसिन से क्या होगा? वेट गेन भी होना स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट को. लैक ऑफ एक्सरसाइज, पुअर डाइट एज वेल एज फीचर्स ऑफ एन इलनेस such as depression or disorganized thought process may contribute to health problem development. एक तो उनको वो मेंटली डिसेबल्ड है, उन्हें उनका मेंटल ओरिएंटेशन इतना है ही नहीं, अच्छा है ही नहीं. सो एक्सरसाइज भी नहीं करते, डाइट भी अच्छे से नहीं करते. एक तो ऑलरेडी उनको इलनेस है, डिप्रेशन लाइक डिप्रेशन है, डिसऑर्गेनाइज थॉट, कोई भी मेंटल इलनेस है. सो ये सारी चीजें मिलकर क्या होगी? नई हेल्थ प्रॉब्लम उनमें इश्यूज स्टार्ट होना चालू हो जाएगा. Side effects from the psychotropic medication such as sedations, weight gain, increased appetite contribute to incidence of diabetes and metabolic syndrome in this population. जो भी वो मेडिसिन ले रहे हैं, साइकेट्रिक मेडिसिन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग वाली जो मेडिसिन थी, उसके साइड इफेक्ट से क्या होगा? सीडेशन होता है मेडिसिन से, हमने ऑलरेडी पढ़ा था. जो कौन से टाइप की मेडिसिन में सीडेशन होता है? बेंजोडाइजेपाइन्स. यस, हाँ, पाइन वाली. सो ये सारी मेडिसिन है, उनसे सिडेशन होगा, वेट गेन होता है और एपेटाइट भी इंक्रीज हो जाती है. तो इसकी वजह से कौन से डिजीज कंडीशन
होना स्टार्ट हो जाएगी, डायबिटीज स्टार्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, व्हाट इज दैट? मेटाबॉलिक सिंड्रोम मीन्स मेटाबॉलिज्म થવું જોઈએ ને પ્રોપરલી, જેમ કે એપેટાઇટ હોય ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું, syndrome means બહુ બધા ભેગા yes, there are multiple disorders or symptoms. So and metabolic is related to જીએસ मेटाबॉलिज्म જે થાય तो उनका मेटाबॉलिज्म ही ऑल्टर हो जाएगा तो सारे डिजीज कंडीशंस देखने को मिलेंगे, लाइक हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये सारे मेटाबॉलिज्म की वजह से होते हैं। सो सारे डिजीज देखने को मिलेंगे। सो दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। Due to the higher frequency of substance abuse, risky sexual behaviors, and lack of knowledge regarding the risk, individuals with a mental health problem are at increased risk for STI. आपको पता होगा कि जो मेंटली डिसेबल्ड पर्सन में हमने ऑलरेडी स्टडी किया था, ड्रग अब्यूज वाले होते हैं वो भी मेंटली डिसेबल्ड ही कहलाए जाते हैं। वाई? बिकॉज दे आर अब्यूजिंग द ड्रग्स, उनको हेल्दी नहीं बोला जाएगा। सो जो ऐसे सब्सटेंस अब्यूज करते हैं वो लोग क्या करते हैं, रिस्की सेक्सुअल बिहेवियर्स करेंगे। देन उनको रिस्क ये करने से ये प्रॉब्लम होगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से एसटीआई होगा या अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी हो जाएगी, ऐसा कुछ पता ही है। दे आर नॉट अवेयर अबाउट द रिस्क। तो रिस्क के बारे में अवेयर ही नहीं है। सो उसकी वजह से जो ये लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स वाले लोग हैं उनमें एसटीआई का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर कि व्हाट दे आर डूइंग। Sexual dysfunction can result from mental health problems as well as the medication used to treat it. हमें पता है कि कोई मेंटल हेल्थ इलनेस है, उसकी वजह से जो सेक्सुअल फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा, या फिर समटाइम्स जो मेडिसिन ले रहा है पेशेंट उसकी वजह से सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो सकता है। Xerostomia from reduction in salivary gland flow due to the medication can result in difficulty maintaining the oral hygiene and overall health. What is xerostomia? New students will speak. Dry mouth. Dry mouth. So dry mouth क्यों हुआ? बिकॉज ये जो मेडिसिन वो लोग ले रहे थे उसकी वजह से जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उसका फ्लो कम हो गया और उसकी वजह से ड्राई माउथ हो गया है। तो ये जो पेशेंट्स है वो ड्राई माउथ की वजह से अच्छे से ओरल हाइजीन या ओवरऑल उनकी ओरल हेल्थ मेंटेन नहीं कर पाते। सो दिस आर द कॉमन प्रॉब्लम्स that are seen in mentally unhealthy people. What are the healthcare considerations for the individuals with mental health problems? जो भी mental health problems वाले हैं उनमें healthcare considerations आपको क्या ध्यान में रखनी है? So individuals with mental health problems have a difficult time assessing needed and available accessing and needed and available healthcare services. जो भी mentally unhealthy है, एक तो पहले उनको healthcare एक्सेस करने में ही प्रॉब्लम होता है। एंड क्यों? बिकॉज उनके लिए अवेलेबल हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत कम है। जितनी नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनकी उतनी इनके लिए नहीं है। फैमिली एंड सोशल सर्विस सपोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर दिस इंडिविजुअल्स। जो मेंटली अनहेल्दी है उनके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फैमिली सपोर्ट, सोशल सर्विसेज सपोर्ट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Governmental insurance has expanded to cover individuals in a need of mental health care. पहले क्या था, गवर्नमेंटल जो इंश्योरेंस आते थे, जो अपने गवर्नमेंट के इंश्योरेंस, उसमें मेंटल हेल्थ इलनेस कवर नहीं होता था, सारे डिजीज कवर होते थे बट नॉट रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। पर अब तो क्या हुआ है कि सारे गवर्नमेंटल इंश्योरेंस है वो भी एक्सपांड हो गया और उसमें जो भी मेंटल हेल्थ केयर रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट होगी वो सब उसमें कवर होता है। अगर कोई पेशेंट मेंटली अनहेल्दी है, फ्रीक्वेंटली उसको लाइक ईईजी करना पड़ेगा, देन इलेक्ट्रोथेरापी और जो सब ट्रीटमेंट है तो वो कवर हो जाती है nowadays. Mental health screening must be completed regularly for all individuals, which allows for prompt and accurate treatment strategies to prevent further health complications. सारे पेशेंट का रेगुलरली मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको अर्ली पता चलेगा कि कोई डिजीज कंडीशन या फिर डिप्रेशन है, अर्ली स्टेज में ही आपको पता चल जाएगा, वो वर्स हो उससे पहले। सो उसकी कॉम्प्लिकेशन आप प्रिवेंट कर पाओगे। कैसे प्रिवेंट होगी? सो आप फ्रिक्वेंटली हर बार जितनी बार पेशेंट आता है उतनी बार आप उसका मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग करते हो, इसकी वजह से आपको ये हेल्प हुई। Refer to the mental health chapter for additional information about this population. हमने ऑलरेडी मेंटल हेल्थ में
पढ़ लिया था कि ऐसे पेशेंट की कैसे केयर करनी है, क्या ध्यान रखना है, ऐसे पेशेंट बहुत स्पेशल पेशेंट होते हैं, सो ये बहुत ध्यान रखना है. वन इम्पोर्टेंट थिंग विच इज नॉट मेंशन हियर रिलेटेड टू मेडिकेशंस. जो मेंटली अनहेल्दी पेशेंट्स है उसमें मेडिसिन रिलेटेड आप क्या ध्यान रखोगे? सेम पॉइंट दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, बिकॉज उनमें भी ये रिस्क ज्यादा था. हाँ, yes, because जो सब्सटेंस अब्यूज करते हैं दे आर कॉल्ड एज मेंटली अनहेल्दी. सो आपके पास कोई पेशेंट है हु इज मेंटली नॉट फिट. क्यों? बिकॉज वो ड्रग अब्यूज कर रहा था और उसकी ट्रीटमेंट के लिए आया है. सो ऐसे पेशेंट को आप ऐसी मेडिसिन दोगे जिससे अब्यूज होने का पोटेंशियल और बढ़ जाए? नो, वी कैन नॉट गिव. सो ये पॉइंट भी याद रखना, मेंटल हेल्थ पेशेंट में भी ये एप्लीकेबल है. सर्टेन मेडिसिन कैन नॉट बी गिवन टू सच पेशेंट्स हु आर अब्यूजिंग द ड्रग्स. जो ऑलरेडी अब्यूज कर रहे हैं उसको हम ऐसी मेडिसिन नहीं दे सकते बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ अगेन अब्यूजिंग दैट मेडिसिन. अंडरस्टूड? yes or no? Yes, ma'am. okay. next is older adults. older adults में किसका रिस्क ज्यादा है? क्या उनको ज्यादा सफर करना पड़ता है? Neglect. निग्लेक्ट उनमें बहुत ज्यादा होता है इन द ओल्डर एज पीरियड. सो एल्डर अब्यूज इज अ कंसर्न फॉर दिस पॉपुलेशन. एल्डर अब्यूज बहुत ज्यादा होता है. हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आर मैंडेटेड टू रिपोर्ट इफ देयर इज एनी सस्पिशन ऑफ एल्डर अब्यूज. अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, शक है, सस्पिशियस है कि इस एल्डर का, ये ओल्ड पीपल है, उसका अब्यूज हो रहा है, सो यू हैव टू रिपोर्ट दैट. एल्डर अब्यूज फिजिकल भी हो सकता है, इमोशनल भी हो सकता है, निग्लेक्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, एंड फाइनेंशियल अब्यूज भी होता है एडल्ट का. जो उनके बच्चे होते हैं उनके पैसे ले लेते हैं. सो दिस आर द अब्यूज. बट मोस्ट कॉमन क्या है? निग्लेक्ट. वो ध्यान ही नहीं देते उनके पेरेंट्स पर. सो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अब्यूज इज निग्लेक्ट. निग्लेक्ट उनमें बहुत ज्यादा कॉमन है. many health problems can occur in the older client. old है तो उसमें बहुत सारे problems के risk है. so which are the common health problems in older client? let's see box 5.5. एक तो अल्जाइमर्स हो जाएगा ड्यू टू एजिंग. आर्थराइटिस उनमें देखने को मिलेगा. डिमेंशिया, डिप्रेशन, फॉल्स, हार्ट डिजीजेस, इन्फ्लुएंजा, ओबेसिटी, ओरल और डेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. स्पेसिफिकली सारे दांत उनके गिर जाएंगे. देयर विल बी नो एनी टीथ. ऑस्टियोपोरोसिस होगा, न्यूमोनिया, पोवर्टी भी वो एक्सपीरियंस करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंसिस. रेस्पिरेटरी डिजीजेस होंगे, शिंगल्स एंड सब्सटेंस अब्यूज भी हो सकता है इन ओल्डर एडल्ट्स. दिस आर द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स which are faced by older people. See chapter 20 for more information on the common health condition experienced by older adults and on the care of the older adults. कैसे older adults का क्या ध्यान रखना चाहिए? That we will study in chapter 20. Next group is military veterans. Before starting this topic, let's take a short break. Then we will start this topic, military veterans. Should we start now? Yes, ma'am. Okay, so next group is military veterans. What is this? Military veterans means? What is military veterans? I think मैं already કીધું હતું તમને previous class માં કદાચ. Military માં કામ કરે. हाँ, but right now they are working or not? Not. Why? Retired military officer. Yes. Military veterans are those people, those who have served in military force, armed force. एमने उन लोगों ने पहले काम किया है. Right now they are not working in the military force due to any reason. Like first of all तो retirement की वजह से, या फिर उनको कोई ऐसी इंजरी हो गई है, वो डिसेबल्ड हो गए हैं, सो दे कैन नॉट सर्व इन द मिलिट्री. उनमें डिसेबल्ड पीपल का काम ही नहीं है, सो दे हैव टू लीव दैट armed force or military force. So these people are called as military veterans. अगर कोई patient ऐसा आता है आपके पास तो इसमें क्या problems? Military veterans जो लोग हैं उनमें क्या problems देखने को मिलती है? So this population is at increased risk for injury related and stress related illness. एक तो पहले
फाइट की वजह से, लाइक वॉर की वजह से इंजरीज के रिस्क ज्यादा होते हैं उन लोगों में, सो उनको इंजरी रिलेटेड इलनेस ज्यादा देखने को मिलेगी। एंड स्ट्रेस रिलेटेड क्यों? बिकॉज ऑफ वॉर उनको स्ट्रेस होगा, या फिर रिटायरमेंट की वजह से उनको ऐसा स्ट्रेस होता है कि नाउ आई कैन नॉट सर्व फॉर माय नेशन, और या फिर डिसेबिलिटी हो गई है तो उनको निकाल दिया है, सो उसकी वजह से स्ट्रेस होता है। सो दिस आर द कॉमन प्रॉब्लम। mental health and or behavioral adjustment disorders are so common in military veterans. Substance use disorder, अगर ऐसा कुछ हुआ है कि now they cannot serve for their nation due to disability, वॉर हुआ था और उसमें हाथ पैर कुछ कट गया और दे बिकम ब्लाइंड और एनीथिंग, कुछ भी हो गया उनके साथ, कोई भी इंजरी हो गई, सो वो अब सर्व नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे? सब्सटेंस अब्यूज चालू कर देंगे, अल्कोहल कंज्यूम करना चालू कर देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सॉरो। So substance abuse disorder with tobacco, alcohol or other drugs and suicide are also more common. वो लोग suicide attempt भी कर देते हैं because of guilt कि मैं ये सर्व नहीं कर सकता and all these things. PTSD and moral injuries are common among this population. वॉर की वजह से PTSD होगा, या फिर कुछ ऐसा हुआ है कि वो लोग बहुत मुश्किल से उनकी लाइफ बची है, सो वो ट्रॉमा की वजह से लाइक PTSD हो सकता है। एंड मोरल इंजरी ड्यू टू एनी रीजन, उनको कोई लाइक इनोसेंट की जान लेनी पड़ी और ऐसा कुछ हुआ, तो मोरल इंजरीज भी हो सकती है उनमें कॉमन। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इंजरी, गोली लगने की वजह से या फिर फाइटिंग की वजह से ब्रेन इंजरी भी हो सकती है उनको, फोर्स की वजह से। limb amputation and disfigurement are also common, like पैर कट जाए या हाथ पैर कट जाए, ऐसा कुछ हो, एम्प्यूटेट हो जाए लिम्ब, कोई भी लिम्ब, फिर डिसफिगरमेंट हो जाए, तो ये भी उन लोगों में बहुत कॉमन है। लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स में रिजल्ट फ्रॉम एक्सपोजर टू केमिकल एंड एनवायरमेंटल इरिटेंट्स। हमें पता है कि ये लोग कैसे काम करते हैं, कैसे हार्श एनवायरमेंट में ये लोग सर्वाइव करते हैं। दे आर सर्वाइविंग इन हार्श एनवायरमेंट्स और केमिकल्स के एक्सपोजर की वजह से उनको लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। मिलिट्री वेटरन्स कैन एक्सपीरियंस इश्यूज लीडिंग टू होमलेसनेस जैसे भी इश्यूज एक्सपीरियंस करते हैं। बिकॉज बहुत टाइम से वो लोग ऐसे बाहर ही रहते हैं, वो घर पे नहीं रहते, तो उनमें भी फ्रॉस्ट बाइट। अगर वी नो कि वो लोग कंट्री को बचाने के लिए, नेशन को सर्व करने के लिए एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, हॉट वेदर में भी रहेंगे, सो उनको फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है। वी नो कि एंग्लेक्स कंट्रीज आर सो कोल्ड इन विंटर्स, सो उनको भी फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है। तो जैसे होमलेसनेस की इश्यूज होती है, उनको भी हो सकती है। वो बाहर रहते हैं तो हेल्थ केयर एक्सेस कहाँ से करेंगे, वहां पर कहाँ से हेल्थ केयर एक्सेस उनको मिलेगी? तो जैसे सेम होमलेसनेस के इश्यूज है, उनको भी एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं। What are the healthcare considerations? क्या ध्यान में रखनी है while you are treating a military veterans? Identifying and treating mental health problems assist in mitigating the suicide risk. आपके पास कोई मिलिट्री वेटरन आ रहा है, मिलिट्री वेटरन मीन्स राइट नाउ ही इज नॉट वर्किंग इन अ मिलिट्री फोर्स, सो उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मेंटल हेल्थ इश्यू उनको अभी है, PTSD है, मोरल इंजरी है, या फिर कोई बिहेवियरल मेंटल डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, क्या है। सो उससे आप हेल्प कर सकते हो कि सुसाइड रिस्क उनका कम हो सके। यू कैन मिटिगेट दैट सुसाइड रिस्क। Treatment of comorbid conditions such as PTSD or moral injury help to address the substance use disorder. वो सब्सटेंस यूज क्यों कर रहे हैं, सो वो जानने के लिए आपको PTSD के बारे में आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम PTSD या मोरल इंजरी। अगर वो है तो उसकी वजह से वो सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है, डायरेक्टली दे आर नॉट अब्यूजिंग ड्रग एंड अल्कोहल। क्यों कर रहा है, उसके पीछे का रीजन यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम PTSD या मोरल इंजरी। The use of screening tool in identifying substance use disorder will help to plan appropriate care. अभी आपको पता चल गया कि पेशेंट को मोरल इंजरी हुआ था, उसको कुछ ऐसा करना पड़ा जो उसके लिए रॉन्ग था, फिर भी पेशेंट को एनी हाउ करना पड़ा, या फिर पेशेंट ने विटनेस किया कि उसकी आंखों के सामने कुछ रॉन्ग हुआ एंड पेशेंट जो पर्सन है उसने वो उसको सेव नहीं कर पाया, सो वो उस गिल्ट की वजह से सब्सटेंस अब्यूज चालू कर दिया, अल्कोहल लेना चालू कर दिया। सो यू हैव टू यूज डिफरेंट स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लेट मी गिव यू वन आइडिया। इफ यू हैव सीन दैट मूवी संजू, सो उसमें बहुत बताया गया था कि व्हेन संजय दत्त गोज टू दैट रिहेबिलिटेशन होम, उसको पूछते हैं कि कौन से ड्रग आपने अब्यूज किया है, सो ही वाज टेकिंग ऑल ऑफ द ड्रग्स। सो देयर वाज अ टूल, उससे पता चलेगा कि ये पेशेंट को कौन सा अब्यूज है एंड कैसी अप्रोप्रिएट केयर देनी है।
So you have to use certain tools. The US Department of Veteran Affairs can assist in managing some of the health issues experienced by these individuals. Yes, ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने मिलिट्री फोर्स छोड़ दी ना उनकी कोई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा. जो मिलिट्री वेटरन्स होते हैं नाउ दे आर नॉट सर्विंग, बट पहले वो सर्व करते थे. तो एक डिपार्टमेंट है, द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ वेटरन अफेयर्स. वो डिपार्टमेंट क्या करता है कि उन लोगों ने छोड़ दिया है, भले वो रिटायर हो गए या फिर ड्यू टू एनी रीजन नाउ दे आर नॉट सर्विंग फॉर द मिलिट्री फोर्स, बट स्टिल उनके जो हेल्थ इश्यूज है उसको वो मैनेज करते हैं. वो लोग उनमें हेल्प करेंगे पेशेंट को जो भी प्रॉब्लम है, बिकॉज उन लोगों ने पहले फोर्स में सर्व किया था. तो जो ये डिपार्टमेंट है वो उनको हेल्प करेगा, मैनेज करने में उनकी मदद करेगा. नेक्स्ट इज प्रिजनर्स. प्रिजनर्स मीन्स जेल. यस, जो इनकार्सिरेटेड है, जो कैद में है, जो कैदी है, जेल में है, दैट आर कॉल्ड एज प्रिजनर्स. What is the really important point that you have to remember? The environment of a prison predisposes a person to different health conditions such as TB, STI and other infectious or communicable diseases. ये आपको याद रखना है. अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको प्रिजनर दिखाया है कि द पर्सन इज प्रिजनर, तो पहले ही दिमाग में सोच लेना है कि ये पर्सन को कौन से रिस्क ज्यादा है. टीबी, एसटीआई एंड अदर इंफेक्शियस एंड कम्युनिकेबल रिस्क वो बहुत ज्यादा होंगे इन पर्सन को. जो प्रिजनर्स है, प्रिजन में रहते हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलेंगी. सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पुअर हेल्थ आर ऑफन प्रेजेंट इन प्रिजनर्स. जो प्रिजनर्स है, जो कैदी है, उन लोगों में पुअर हेल्थ का एक रीजन क्या है? सोशल डिटर्मिनेंट्स. वो जेल में रहते हैं, उनको कोई सोशल सर्विसेज ही नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से भी उनकी हेल्थ पुअर हो सकती है. Health concerns are asthma, diabetes, hypertension, heart disease and mental health problems. और कौन से प्रॉब्लम्स उनमें ज्यादा देखने को मिलेंगे? सो एस्मा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, heart disease and mental health problems. Infectious and communicable disease are also a concern for this population because prisoners है वो group में रहते हैं, and whenever there is a crowded place in a small space there will be a risk of infectious disease and communicable disease easily spread होंगे. तो वहां पर भी ये रिस्क ज्यादा है. So this is the risk. कौन से common problems है prisoners में? ये है. Now whenever you are caring for a prisoner, हेल्थ केयर कंसिडरेशन क्या ध्यान में रखनी है आपको? द करेक्शनल फैसिलिटी इज यूजुअली द सोल प्रोवाइडर ऑफ हेल्थ केयर फॉर दिस पॉपुलेशन. आपने कभी देखा है कि कोई प्रिजनर को हॉस्पिटल में कुछ माइनर चीज हुई और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया हो? ऐसा कभी देखा है? माइनर प्रॉब्लम, पेशेंट को पेट दर्द हुआ, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया हुआ, तो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं वो लोग? No. यस, वो नहीं करते. उनके लिए स्पेशल करेक्शनल फैसिलिटी में ही ट्रीटमेंट होगी, उनको बाहर नहीं निकालेंगे. व्हेनेवर देयर इज अ मेजर कंसर्न, कुछ बहुत सीरियस हो गए, तभी वो लोग हॉस्पिटलाइज करते हैं. बाकी तो वहां जहां पर उन रहते हैं, जो जेल है, दे आर कॉल्ड एज करेक्शनल फैसिलिटी. करेक्शनल फैसिलिटी मीन्स उनको सुधारने की जगह, उनको करेक्ट करने की जगह. सो वहां दैट इज द ओनली प्लेस जहां पर उनको हेल्थ केयर मिल सकती है. ऐसी पॉपुलेशन को उनको बाहर हेल्थ केयर नहीं मिलेगी, उसको अंदर ही हेल्थ केयर मिलेगी. So screening protocols and procedure for individuals in this setting need to be thorough, consistent and performed regularly. ये जो correctional facility है, मतलब जेल है, वहां पर सारे पेशेंट का स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स एंड प्रोसीजर्स फॉलो होनी चाहिए. कंप्लीटली थॉरली होना चाहिए. सारे पेशेंट्स का स्क्रीनिंग कंसिस्टेंटली होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर करना चाहिए. तभी ये सब आप प्रिवेंट कर सकते हो प्रिजन में, बिकॉज उनको बाहर तो निकाल नहीं सकते आप. एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स में हेल्प मिटिगेट द हेल्थ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ लिविंग इन अ प्रिजन. आपको पता होगा कि जेल के अंदर भी वोकेशनल प्रोग्राम्स चलते हैं. व्हाट इज वोकेशनल प्रोग्राम्स? वोकेशनल वर्ड किसके लिए है? कोई भी ट्रेनिंग employment earning activity. फॉर अर्निंग एक्टिविटी. यस, वोकेशनल इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट. सो आपको पता होगा कि ऐसी करेक्शनल इंस्टीट्यूट्स होती है लाइक जेल, उनमें भी ये जो प्रिजनर्स होते हैं वो कुछ ऐसा वर्क करते हैं जो वर्क से वो अर्न कर सके. लाइक कुछ भी बनाना काम हो या कुछ आर्ट करना हो, कुछ भी वो लोग
एनीथिंग दे कैन डू इन जेल इटसेल्फ। वो हेल्थ केयर करेक्शनल फैसिलिटी में ही ऐसा करते हैं। तो एजुकेशनल एंड वोकेशनल प्रोग्राम्स अंदर होने चाहिए कि जिसकी वजह से प्रिजन में रहने की वजह से जो हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स होते हैं वो कम हो सके, बिकॉज दे आर अवेयर। उनको रेगुलर एजुकेशन मिलता रहेगा कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। वोकेशनल प्रोग्राम्स करेंगे। हिस्ट्री ऑफ इनकार्सिरेशन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ पुअर हेल्थ ड्यू टू लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज टू रिफॉर्म, inadequate housing, employment and education and lack of family stability। अगर कोई पेशेंट का रिस्क है इनकार्सिरेशन का मीन्स जेल में रहने का रिस्क है, हिस्ट्री है उसकी, पहले वो जेल में रहकर आया है, सो उससे उसकी पुअर हेल्थ के रिस्क ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों? बिकॉज उसको चांस ही नहीं मिला एजुकेट होने का, एम्प्लॉयमेंट होने का, लाइक जॉब करने का। हाउस भी नहीं था उसके पास, बिकॉज आधा टाइम तो, आधी जिंदगी तो उसने जेल में ही गुजार दी। सो उसके हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिस्क ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज उसको रिफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, हाउसिंग इनएडिक्वेट था, एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली एंड फैमिली स्टेबिलिटी भी नहीं थी। वो अगर जेल में होता, वो पहले से ही था, लाइक उसने कुछ क्राइम किया, सो उसकी फैमिली कहाँ से होगी? देयर इज अ लैक ऑफ फैमिली स्टेबिलिटी। Failure to address the mental health issues among this population may contribute to repeated crimes when released from the prison। ये जो कैदी लोग होते हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं, अगर आप उनकी मेंटल हेल्थ स्टेटस अच्छे से एड्रेस नहीं करोगे, आइडेंटिफाई नहीं करोगे, सो उससे रिस्क और बढ़ेगा। जब भी उनको रिलीज कर दिया जाएगा जेल में से, सो फिर से वो लोग क्राइम करेंगे। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट मेंटली फिट। आपने देखा होगा ऐसे साइको किलर्स होते हैं, सो उनको अगर छोड़ देंगे तो बाहर जाके वो ही रिपीट करेंगे। दे विल नॉट गेट अ बी अ गुड पर्सन। सो मेंटल हेल्थ उसके इश्यूज पहले से ही आपको आइडेंटिफाई करने हैं, एड्रेस करने हैं, कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ना हो। दोज हु आर इन प्रिजन फॉर लाइफ नीड एडिक्वेट स्क्रीनिंग एंड हेल्थ केयर एज वेल एज। कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि जिनको आजीवन कैद होती है, लाइक दे हैव टू लिव इन अ प्रिजन टिल देयर डेथ। जहां तक, जब तक वो मर नहीं जाते तब तक उनको प्रिजन में ही रहना होगा। तो ऐसे पेशेंट को भी आपको एडिक्वेट स्क्रीनिंग, रेगुलर इंटरवल पर हेल्थ केयर स्क्रीनिंग और सब हेल्थ केयर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा अंदर, बिकॉज टिल देयर डेथ वो वहां पर ही रहने वाले, उनको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलने नहीं वाली। तो प्रिजन में भी ये सारी फैसिलिटीज होनी चाहिए। देर देर इज अ नर्स। जो प्रिजन के जो पेशेंट होते हैं उनको केयर करने के लिए एक नर्स होती है। सो वो सब ये ध्यान रखे। अंडरस्टूड? Yes. Next is immigrants and refugees. What is immigrants and refugees? भारतीय स्थानांतर केलेले Immigrants means कि जो लोग अभी ट्रैवल करके लाइक वर्क वीजा पर, स्टूडेंट वीजा पर गए हैं, बट दे आर नॉट द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, वहां के सिटीजन नहीं है। सो दिस आर कॉल्ड एज इमिग्रेंट्स। एंड रेफ्यूजीज मीन्स, बीजी कंट्री में काटी होते हैं, भागी नहीं गया हो गया। यस, फॉर एग्जाम्पल कोई कोई कंट्री में वॉर हुआ है, सो वो लोग जान बचाने के लिए वो कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में चले गए हैं, या फिर उनको निकाल दिया गया है। सो ऐसे जो पीपल है वो दूसरी कंट्री में आएंगे, सो दे आर नॉट लीगल। वो वीजा लेके नहीं आए, ड्यू टू द इमरजेंसी सिचुएशन उनको आना पड़ा। सो उनके लिए, उनको रहने के लिए टेम्पररी बेसिस पर, फॉर एग्जाम्पल कनाडा में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, देयर इज अ वॉर, और सब लोगों को कंट्री छोड़कर यूएस जाना पड़ा। सो यूएस की गवर्नमेंट ऐसे जो लोग हैं जिनको कंट्री छोड़ के आना पड़ा, उनके लिए टेम्पररी रहने के लिए टेंट्स और वैसे जगह देगी, बट दैट वुड बी फॉर ओनली टेम्पररी पीरियड। परमानेंट उनको यूएस की सिटीजनशिप और हाँ यू कैन लिव इन यूएस ऐसा नहीं होता। सो जो टेम्पररी पीरियड के लिए अपनी कंट्री छोड़कर निकले गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेफ्यूजीज। सो उनमें कौन से प्रॉब्लम्स ज्यादा है, लेट्स सी। Challenges include learning to speak English. First challenges, जो इमिग्रेंट्स है, रेफ्यूजीज है, वो कंट्री के नहीं थे, सो इंग्लिश बोलने में, लर्न करने में एक तो पहला प्रॉब्लम होगा। और द अडॉप्टेड लैंग्वेज ऑफ देयर न्यू कंट्री, कोई भी नई कंट्री में गए हैं, सो वो लैंग्वेज बोलने में उनको प्रॉब्लम होगा। रेजिंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब रेस करने में भी उनको प्रॉब्लम होगा। ओवरकमिंग कल्चरल बैरियर्स, यस, वो पर्सन जो इमिग्रेंट है, पहले फॉर एग्जांपल इंडिया से छोड़ के कनाडा यूएस गए हैं, सो कल्चर डिफरेंसेस हो गए, सो कल्चर बैरियर्स भी उनको ओवरकम करने पड़ेंगे। सिटीजनशिप एक प्रॉब्लम होगा कि अभी वो सिटीजन नहीं है वहां पर। एम्प्लॉयमेंट भी प्रॉब्लम होता है इमिग्रेंट को, आपको पता ही होगा कि राइट नाउ देयर इज
so much of unemployment. So employment एक also उनको problems face करना पड़ता है, housing का problem face करना पड़ता है, access to health care की भी उसको अच्छे से access नहीं मिलती जो immigrants है, refugees है उनको, and transportation is also a problem which are faced by the immigrants and refugees. Acculturation to the United States increases the risk of poor health. Yes, आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो कल्चर है वो धीरे धीरे लाइक खराब हो रहा है. इट इज नॉट अ गुड कल्चर. सो उसकी वजह से पुअर हेल्थ के रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. पुअर हेल्थ कैन बी रिजल्ट ऑफ ईटिंग अ लेस हेल्दी डाइट. आपको पता होगा कि ये जो कंट्रीज है वहां पर हेल्दी डाइट वो लोग फॉलो नहीं करते. दे आर रेगुलरली ईटिंग अनहेल्दी डाइट. सो उससे एक पुअर हेल्थ, जो हेल्दी डाइट कंज्यूम करने ईटिंग करना है वो नहीं करते और उसकी वजह से उनको पुअर हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं. इंक्रीज रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स. यहाँ जो है लोग वो रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज्यादा करते हैं. एंड सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली सपोर्ट नेटवर्क. यस, जो इमिग्रेंट्स है, एक तो वहां का कल्चर एक्सेप्ट करने में उन लोगों ने हेल्दी लाइफस्टाइल ईटिंग जो पैटर्न थी वो छोड़ दी, अनहेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करना स्टार्ट किया, रिस्क टेकिंग बिहेवियर स्टार्ट कर दिया इमिग्रेंट्स ने. एंड एक तो उनकी फैमिली से भी अभी वो सेपरेटेड है, दे आर लिविंग अलोन देयर. सो फैमिली सपोर्ट उनका नेटवर्क टूट गया है, सेपरेट हो गया है इनकी वजह से. तो दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. देयर आर मैनी हेल्थ कंसर्न्स फॉर दिस पॉपुलेशन. ये जो पॉपुलेशन है, जो इमिग्रेंट्स है, रेफ्यूजीज है, उनको बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं. मैनी रिजल्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन and include infectious diseases such as TB, hepatitis, vector-borne diseases, influenza, coronavirus, STI, and childhood diseases such as measles, mumps, rubella, polio. Antimicrobial resistance is a concern. ये जो मेजोरिटी ऑफ हेल्थ कंसर्न्स वो फेस करते हैं, वो क्यों फेस करते हैं? ड्यू टू माइग्रेशन. एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, सो यहाँ के जो प्रीवेलेंट डिजीज है वो लेकर जाएंगे. आपको पता होगा कि whenever you are traveling to another country you have to go for the medical checkup. मेडिकल चेकअप क्यों करवाते हैं? बिकॉज सर्टेन डिजीजेस आर प्रिवेलेंट इन अवर कंट्री. हम वो डिजीज कंडीशन वहां लेकर ना जाए, दैट्स व्हाई दे आर चेकिंग अवर मेडिकल हिस्ट्री और मेडिकल कंडीशन. फॉर एग्जांपल, अगर कोई पेशेंट मेडिकल चेकअप करने के लिए गया एंड देयर इज अ रिस्क, टीबी का रिस्क है, तो जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता दे विल नॉट प्रोवाइड अ वीजा. वीजा नहीं होगा. वहां से कोई यहाँ पर आता है तो उनको भी मेडिकल चेकअप करना होता है कि वहां पर जो डिजीज कंडीशंस प्रिवेलेंट है वो इंडिया में ना आ जाए. सो व्हेनेवर देयर वाज कोविड-19, सारे इमिग्रेंट्स और सब बंद कर दिया था. एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अलाउ नहीं करते थे. क्यों? बिकॉज दे कैन ट्रांसफर कोविड. सो इसकी वजह से ये इन्फेक्शियस डिजीज माइग्रेशन की वजह से ज्यादा होते हैं, लाइक टीबी, हेपेटाइटिस, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, इन्फ्लुएंजा, कोविड, एसटीआई. चाइल्डहुड डिजीजेस लाइक मीजल्स, मम्स, रुबेला वो चाइल्डहुड में होता है. पोलियो, फिर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये सब डिजीज कोई लेकर ना जाए माइग्रेशन करने की वजह से, तो ये बहुत कॉमन है. फॉर रेफ्यूजीज, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू वॉर, वायलेंस एंड रेप अकरिंग इन कैंप्स आर अ कंसर्न्स. जो रेफ्यूजीज है, आगे के एबीसी पॉइंट्स है वो सारे इमिग्रेंट्स के लिए थे. अभी जो रेफ्यूजीज है उनको कौन से प्रॉब्लम से फेस करने पड़ते हैं? सो मेंटल हेल्थ उनकी अफेक्ट होगी. पीटीएसडी देखने को मिलेगा, मोरल इंजरी देखने को मिलेगी, बिकॉज वॉर की वजह से. वॉर की वजह से उनको एक तो कंट्री छोड़नी पड़ी, वायलेंस हो रहा था उनकी कंट्री में, उसके लिए उनको छोड़ना पड़ा. तो वॉर और वायलेंस की वजह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे. एंड समटाइम्स वो जहाँ पर टेम्पररी फेज के लिए रहते हैं, कैंप टेंट्स जो प्रोवाइड करते हैं, वहां पर उन लोगों पर रेप होता है. सो उसकी वजह से भी उनकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी. सो दिस आर द कॉमन प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इमिग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज. हेल्थ केयर कंसिडरेशन आपको क्या ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर केयरिंग फॉर एन इमिग्रेंट और रेफ्यूजीज? A process of offering services and treating immigrants and refugees must be available regardless of insurance status. They are showing you the solutions. पहले तो सारे immigrants and refugees के लिए सर्विस होनी चाहिए, whether they have insurance or not, regardless of insurance status. उनके पास इंश्योरेंस स्टेटस कैसा है उसके अलावा उनको सारी केयर मिलनी चाहिए. We are saying this. Refugees may be eligible for short-term medical assistance in US, but they may lack healthcare coverage due to ineligibility for the state medical assistance or inability to afford private health insurance. रेफ्यूजी है वो शॉर्ट पीरियड के लिए उनको मेडिकल असिस्टेंस मिलेगा. फॉर एग्जांपल, वॉर हुआ है तो वो लोग छोड़कर आए हैं अपनी कंट्री, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए, तो उनको केयर कहाँ से मिलेगी? सो
यूएस में आए हैं तो यूएस वाले उनको केयर देंगे, पर शॉर्ट टर्म के लिए ही देंगे, लॉन्ग टर्म के लिए उनको केयर नहीं मिलेगी, बिकॉज दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द स्टेट मेडिकल असिस्टेंस। वो एलिजिबिलिटी कब मिलेगी, व्हेन दे आर सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, सो वो एलिजिबल नहीं है, उसकी वजह से उनको अच्छे से हेल्प नहीं मिलती। और दूसरा रीजन क्या है, वो अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे। अगर डॉक्टर्स मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा बोले कि यू कैन पे, आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपको पे करना पड़ेगा, पर वो अभी छोड़कर आए हैं, दे आर रेफ्यूजीज, तो वो कैसे अफोर्ड करेंगे। सो दिस आर द रीजंस कि उनमें ये प्रॉब्लम्स होता है। Nurses need to be aware of the limited access to the healthcare resources and explore the possible healthcare services for this population. Being a nurse, हमें पता होना चाहिए कि ये जो immigrants है, refugees है, उनके पास जो healthcare facilities है, access है, बहुत limited है। जितनी citizens को मिलती है उतनी इनको लोगों को नहीं मिलती। So हमें वो awareness होनी चाहिए कि इन लोगों के पास बहुत limited access है, and we have to explore कि आप कैसे उनको services दे सकते हो। We know कि उनके पास limited है, बट आप कैसे उनको ज्यादा हेल्प कर सकते हो, उनको जितनी पॉसिबल हो सके उतनी सर्विसेज कैसे मिलेगी ये पॉपुलेशन को, वी हैव टू एक्सप्लोर दिस थिंग्स। वैक्सीनेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीजेस। यस, जो भी रेफ्यूजीज है, इमिग्रेंट्स है, उनको वैक्सीनेशन तो होता ही है। आपने देखा होगा कि अगर आप वहां पर गए हो एंग्लिक्स कंट्रीज में और दे आर डूइंग वन चेकअप और उसमें पता चलता है कि आपने ये इम्यूनाइजेशन नहीं करवाया था इन योर चाइल्डहुड, तो आपको एडल्ट में भी इम्यूनाइजेशन वो लोग करेंगे, सो वैक्सीनाइजेशन वो करेंगे, इम्यूनाइजेशन करेंगे आपका, कि वो कम्युनिकेबल डिजीज है वो स्प्रेड ना हो। अंडरस्टूड? Yes. यस और नो? ओके। नेक्स्ट ग्रुप इज इंडिविजुअल्स विथ क्रोनिक इलनेस। ऐसे इंडिविजुअल्स जिनको क्रोनिक इलनेस है, लाइक डायबिटीज है, कार्डियक डिजीज है, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिजीज, दिस आर द क्रोनिक इलनेस। जब तक वो जिएगा उसके साथ जिएगा, इट इज नॉट क्योरेबल। So chronic illness is a leading cause of death and disability in the United States. The prevalence increases with the age and is a major cause of disability. Major cause of death and disability क्या है? एक तो chronic illness, वो एक बहुत major leading cause है death का और disability का in the US। और प्रीवेलेंस उसके बढ़ते जा रहे, प्रीवेलेंस मीन्स उसके अकरेंस, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्रोनिक डिजीज होने के रिस्क भी और बढ़ रहे हैं। क्रोनिक इलनेस इंक्लूड्स कौन से क्रोनिक इलनेस है वहां पर, इलनेसेस है तो कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस, कैंसर, रेस्पिरेटरी डिजीज, डायबिटीज, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, विजन एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, ओरल डिजीजेस, बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। These are the chronic illnesses जिसका कोई क्योर नहीं है, patient has to live with all these disorders. Poor health outcomes and high healthcare costs are associated with chronic illnesses. जो भी पेशेंट को क्रोनिक इलनेस है उसके हेल्थ आउटकम भी पुअर होंगे, बिकॉज वो रातों रात तो ट्रीट होने वाला ही नहीं है, एंड हेल्थ केयर कॉस्ट भी उसको हाई होगी, बिकॉज फ्रिक्वेंटली उसको हॉस्पिटल जाके चेकअप करवाना होगा या उसकी ट्रीटमेंट होगी, लाइफ लॉन्ग उसकी ट्रीटमेंट चलती रहेगी। अगर मेडिसिन ले रहा है तो जब तक जिंदा है तब तक उसको मेडिसिन लेते ही रहना पड़ेगा। सो हेल्थ केयर कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाते हैं। ऑप्टिमल केयर for individuals with multiple chronic illnesses may be limited because of the multiple health needs present. Yes, कोई ऐसा पेशेंट है कि जिसको मल्टीपल क्रोनिक इलनेसेस है, सो उसको भी लाइक उतनी अच्छे से केयर नहीं मिल पाएगी। फॉर एग्जांपल पेशेंट को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है और उसके साथ साथ पेशेंट को सीओपीडी भी है और उसकी किडनी भी फेल हो गई, सो कितने सारे मल्टीपल क्रोनिक डिसऑर्डर्स हो गए। सो ऐसे पेशेंट को आप अच्छे से केयर कर पाना, दैट इज सो डिफिकल्ट। Many health professionals do not feel adequately prepared to manage individuals with multiple chronic illnesses. Yes, बहुत सारे हेल्थ प्रोफेशनल ऐसे हैं कि वो प्रिपेयर ही नहीं है एडिक्वेट कि ऐसे इंडिविजुअल्स जिसको मल्टीपल क्रोनिक इलनेस है उसको कैसे मैनेज करें। हाइपरटेंशन के लिए मेडिसिन लेगा, डायबिटीज के लिए, किडनीज फेल है, सीओपीडी, क्या मैनेज करो आप, कितना मैनेज करोगे। इंडिविजुअल विथ वन क्रोनिक इलनेस इज एट रिस्क फॉर डेवलपिंग मल्टीपल क्रोनिक इलनेस। अगर कोई एक पर्सन है जिसको एक क्रोनिक इलनेस हुई है, उसकी वजह से मल्टीपल क्रोनिक इलनेसेस हो सकती है। वी नो ओबेसिटी की वजह से बहुत सारी बीमारी होती है, डायबिटीज की वजह से भी बहुत सारी होगी। सो एक क्रोनिक इलनेस अगर उसको हो जाएगी तो उसको रिस्क है कि उसको मल्टीपल क्रोनिक इलनेसेस भी हो सकती है। मॉडिफाइबल फैक्टर्स इंक्लूड
अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड टबैको यूज। कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आप मॉडिफाई कर सकते हो? पेशेंट को कोई क्रोनिक इलनेस है, वो क्रोनिक इलनेस को स्टेबिलाईज करने के लिए आप क्या करोगे, क्या मॉडिफाई कर सकते हो? तो वो एक तो पहले अनहेल्दी डाइट ले रहा था, तो आप उसको बोल सकते हो कि यू कैन चेंज योर डाइट टू हेल्दी डाइट। फिजिकल इनएक्टिव था, वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल थी उसकी, तो आपको उसको बोलना है कि यू हैव टू बी फिजिकली एक्टिव। टोबैको यूज कर रहा है तो वो स्किप कर सकता है। तो दिस आर द मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो आप चेंज कर सकते हो। विच आर नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स जो आप चेंज नहीं कर सकते हो? पेशेंट की एज आप चेंज कर सकते हो? कैन यू चेंज द एज ऑफ पेशेंट? नो। कैन यू चेंज द जेंडर ऑफ पेशेंट? फीमेल में से ऐसा बोल सकते हो कि कन्वर्ट टू मेल, तो आपको ये प्रॉब्लम, दैट इज नॉट पॉसिबल। पेशेंट का जीनेटिक्स आप चेंज कर पाओगे? जो जीन्स है, जेनेटिकली उसको इनहेरिटेड है कोई डिजीज, तो जीन्स आप चेंज कर पाओगे? नो, वी कैन नॉट चेंज दिस फैक्टर, सो दिस आर द नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। अंडरस्टूड? yes or no? Yes. Online students are sleeping. Yes, ma'am. Okay, healthcare consideration for individuals with chronic illnesses. जिसकी chronic illness है उसको healthcare considerations क्या ध्यान में रखना है? So first, follow-up care is important in promoting the health of individual with chronic illness. Chronic illness वाले patient है उस पर follow-up का focus ज्यादा है, because ऐसा तो है नहीं कि वो hospital में आएंगे, इस बार medicine दी, उनकी chronic illness खत्म हो गई. It is not like that. उनको regular follow-up करते ही रहना पड़ेगा. Focusing on a single illness does not effectively manage an individual with multiple chronic diseases. कोई पेशेंट ऐसा है कि उसको मल्टीपल क्रोनिक डिजीज है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ESRD एंड COPD सब है। सो एक ही डिजीज पर आप फोकस करोगे कि हाँ अभी डायबिटीज को क्योर करते हैं, डायबिटीज कंट्रोल हो जाए, देन वी विल मूव टू हाइपरटेंशन। सो इज इट पॉसिबल कि आप इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे? नो, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप जिसको मल्टीपल डिसऑर्डर्स है और उसकी एक ही डिजीज पर आप फोकस कर रहे हो, सो उससे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे। इंस्टेड आपको क्या करना चाहिए? रेदर द बिग पिक्चर नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन मैनेजिंग दिस क्लाइंट्स। एक बिग पिक्चराइज करना होगा कि सब एक साथ आप कैसे मैनेज कर पाओगे। ये मेडिसिन दोगे तो ये मेडिसिन की किडनी पर इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, सो दोनों चेक हो जाए। हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए ये करना है, COPD भी साथ में कंट्रोल करना है। सो यू हैव टू विजुअलाइज अ बिग पिक्चर and then you can manage the patient. Interprofessional collaboration is important in safely managing the individuals with chronic diseases. बहुत सारे क्रोनिक डिजीज है, सो उसमें आपको इंटरप्रोफेशनल कोलैबोरेशन करना पड़ेगा. व्हाट इज इंटरप्रोफेशनल कोलैबोरेशन? इंटरपर्सनल लेवल हर जगह होता है, एक ये कॉम्बिनेट करें तो लोग बात करें. इंटरपर्सनल इज डिफरेंट, इंटरप्रोफेशनल इज डिफरेंट. ऑल हेल्थ प्रोफेशनल कोलैबोरेट करो हम. यस, जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स है. फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया था, डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन है, तो डायबिटीज है दैट इज हमें एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी. हाइपरटेंशन है सो कार्डियोलॉजिस्ट भी अंदर कोलैबोरेट होगा. देन किडनी प्रॉब्लम है, ESRD है सो नेफ्रोलॉजिस्ट भी होगा. देन COPD है तो रेस्पिरेटरी जो है वो भी डॉक्टर, सारे डॉक्टर मिलकर उसकी केयर करेंगे. Nurses play a key role in facilitating the interprofessional communication between providers and specialists. सारे जो इंटरप्रोफेशनल कोलैबोरेशन हमने किया उन लोगों में कम्युनिकेशन हो, तो कौन करता है फैसिलिटेट? उनका मीडिएटर कौन है? वी आर द मीडिएटर, कि हम कम्युनिकेट करें. सारे डॉक्टर्स एक साथ तो विजिट करने के लिए आएंगे नहीं पेशेंट को. पहले एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आए, उन्होंने ये एडवाइस किया, फिर नेक्स्ट आए नेफ्रोलॉजिस्ट, तो वी हैव टू टेल देम कि एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आए थे और उन्होंने ये बोला एंड ये बोला. सो वी आर द की कि उन लोगों में कम्युनिकेशन हम मेंटेन कर पाए. सो वी आर इम्पोर्टेंट रोल और वी आर इम्पोर्टेंट की. Inclusion of the client and support persons in the healthcare consideration helps to increase the adherence to a complex healthcare regimen. Yes, ये जो पेशेंट है जिसको मल्टीपल क्रोनिक डिजीज है, सो वो हेल्थ केयर ट्रीटमेंट पर स्टिक रहे. बिकॉज ये पेशेंट है, इतनी सारी गोलियां लेनी है, इतना सारा करना है, तो दे विल थिंक कि जितना होगा उतना जिएंगे, बाकी नहीं. सो दे विल नॉट स्टिक टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट और रेजिमेंट. सो उनको स्टिक रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को भी इंक्लूड करना पड़ेगा और उसके जो सपोर्ट पर्सन है, लाइक उसके स्पाउस, पेरेंट्स जो भी है, उनको भी ट्रीटमेंट में इंक्लूड करना पड़ेगा,
तब जाके वो उसकी जो ट्रीटमेंट है उस पर स्टिक रहने के चांसेस इंक्रीज होंगे। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Okay. So this is all about different population. Now there are certain important populations जो book में नहीं है, but still it is asked in examination. So let's study the different populations. For that you have to join the class. Okay. So till now, any doubts, online students? ये No, हमने ma'am. different populations जो book की थी वो पढ़ ली. Now the important population that are being asked in examination. First is Orthodox Jewish people. So ये जो people है वो क्या culture follow करते हैं, क्या consideration आपको ध्यान में रखनी है. Let's study. Some clients follow a kosher diet. ये जो Orthodox Jewish people है वो लोग kosher diet follow करते हैं. Why they have written some people? Because मैंने example दिया था कि सारे स्वामीनारायण will not avoid onion and garlic. Certain people will not follow that rule. So Orthodox Jewish people normally follow the kosher diet. But उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि वो लोग नहीं follow करते होंगे. So we have to remember कि Orthodox Jewish people है वो kosher diet follow करते हैं. What is kosher diet? So kosher diet में क्या points याद रखने हैं? So first of all, no shellfish. Shellfish वो लोग नहीं खाते और इंस्टेड ऐसा याद रखना है कि जिसके भी fins हो. Fins means जो फिश के फिन्स होते हैं वैसा फूड वो नहीं खाएंगे. जिसके भी फिन्स होंगे दे विल नॉट कंज्यूम ऑल दिस थिंग्स. सो नो शेलफिश, नो pork. Pork means मीट है ये? but कौन सा मीट? There are different varieties of meat. Sugar. Pig meat. लीवर Pig. मीट? Pig. Yes, meat. pig meat. Pig. Pig का मीट होता है, that is called as pork. So they will not consume pork. Do not combine meat and dairy products in the same meal. जब भी वो खाना खाते हैं, like right now they are eating, so वो dairy products and meat दोनों साथ में नहीं खाएंगे, एक सेम मील में नहीं खाएंगे. फॉर एग्जाम्पल लंच करने बैठे हैं, सो लंच में डेयरी प्रोडक्ट्स भी होंगे और कोई मीट की आइटम भी होगी. दे विल नॉट कंज्यूम सच मील्स. इंस्टेड वो क्या करेंगे, लंच करने बैठे हैं तो दे विल कंज्यूम मील, मीट खा लेंगे, फिर 2-3 घंटे बाद वो डेयरी प्रोडक्ट्स लेंगे. सो डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट वो सेम मील में कंज्यूम नहीं करते. सो व्हेनेवर यू फाइंड द वर्ड कि कॉशर डाइट इसमें से कौन सा एप्लीकेबल है, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि कॉशर डाइट में फर्स्ट ऑफ ऑल नो एनी सेलफिश, नो एनी pork, and do not combine meat and dairy products. Understood? What is the kosher diet? Yes, ma'am. Yes. And kosher diet कौन follow करेगा? Who will follow the kosher diet? Orthodox Jewish people. Yes. Client will need wrapped plastic utensils and they will unwrap the utensils and prepare their own meal. Yes. ये जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश पीपल है, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं एंड आप उनको खाने के लिए प्लेट देते हो, आपने उनका डाइट का ध्यान रख लिया, वो स्ट्रिक्टली कॉशर डाइट फॉलो करते हैं, तो आपने डाइट का ध्यान रख के उनको डाइट दिया है, बट जो उनके यूटेंसिल्स है, जो प्लेट है, जो स्पून है, जो ग्लास है, वो रैप होनी चाहिए ऐसे. लाइक आपने पहले से प्री पैक्ड थी और आपने खोल के दिया है, सो दे विल नॉट कंज्यूम. उनको पहले से ही रैप वाले देने हैं, नए लाइक कंप्लीटली जो फ्रेश होते हैं वो ही देने, वो खुद से अनरैप करके ही खाएंगे. अगर आपने उनके सामने भी खोला है फिर भी दे विल नॉट कंज्यूम द फूड. सो दे ओनली अनरैप बाय देमसेल्व्स. वो खुद से अनरैप करते हैं, खुद से वो मील प्रिपेयर करके ही खाते हैं. सो मेक श्योर दिस पॉइंट. नेक्स्ट ग्रुप इज जियोवास विटनेस. जियोवास विटनेस में एक ही पॉइंट याद रखना है, दे मे रिफ्यूज द ब्लड प्रोडक्ट्स. वो ब्लड प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करते. सो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई एक फीमेल है, फॉर एग्जांपल प्रेग्नेंट वीमेन है और उसको ब्लीडिंग हो रहा है, एंड द फीमेल इज अ जियोवास विटनेस
group and population. So उसमें ध्यान रखना है कि you will not directly administer the blood products. डायरेक्टली एडमिनिस्टर नहीं करना है, यू हैव टू आस्क द पेशेंट. अगर वो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वी हैव टू अवॉइड द स्टीरियोटाइपिंग. ऐसा नहीं है कि सारे जियोवाज विटनेस विल नॉट एक्सेप्ट द ब्लड प्रोडक्ट्स, बट वी नो कि दे डू नॉट एक्सेप्ट द ब्लड प्रोडक्ट्स. बट हमें पेशेंट की प्रेफरेंस पूछनी है पहले कि विल यू एक्सेप्ट द ब्लड प्रोडक्ट्स और नॉट. इफ पेशेंट सेज कि हाँ आई विल एक्सेप्ट, I have no any problem in accepting the blood products, so you can give. अगर patient बोले कि no, I will not accept the blood products, so you cannot give the blood product to such patient. Next is Christian Scientists. This is another population. उन लोगों में क्या ध्यान रखना है? They do not accept pain medication or other medical treatment, as they believe in healing through prayer and spiritual means rather than medical interventions. Yes. जो क्रिश्चियन साइंटिस्ट होते हैं वो लोग क्या बिलीव करते हैं? वो पेन मेडिसिन भी नहीं लेंगे या कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट वो नहीं लेंगे. क्यों? बिकॉज वो ऐसा बिलीव करते हैं, बिलीव इन हीलिंग. वो स्पिरिचुअल और प्रेयर से ही हील होना बिलीव करते हैं. दे विल नॉट गो एनी अंडरगो एनी मेडिकल इंटरवेंशन और मेडिकल ट्रीटमेंट. वो ऐसा बोलेंगे कि हम प्रेयर से और स्पिरिचुअल मील से ही हील हो जाएंगे. अंडरस्टूड अबाउट दिस पॉपुलेशन? यस मैम. यस. મેમ यस. તમે આ જેહોવા વિટનેસ નું કીધું ને કે બ્લડ પ્રોડક્ટ રિફ્યુઝ કરે, પણ માનો કે HbAm ક્રિટિકલી લો હોય અને પેશન્ટ ના પાડે રિફ્યુઝ કરવાનું, તો એ ટાઈમે આપણે શું કરવાનું? We cannot give them. Simple. તો તો એના consent કારણે લેવાની ને. We have to explain that these are the consequences, but still they are refusing. So we cannot forcibly administer the blood products. રિફ્યુઝ કરે તો કન્સન્ટ લેવાની મેમ. હા, કે ના? એ આપણે મેન્શન કરવું પડે કે યસ પેશન્ટે રિફ્યુઝ કર્યું હતું, પેશન્ટની આટલી ક્રિટિકલ કન્ડિશન હતી, અમે સમજાવ્યું, સ્ટીલ પેશન્ટે રિફ્યુઝ કર્યું, તો બધું જ તમારે ડોક્યુમેન્ટ કરવાનું, પેશન્ટની સાઇન લેવાની કે જે બી હવે તમારી જોડે થશે, યુ વિલ બી રિસ્પોન્સિબલ, નોટ અસ. એ વસ્તુ કરવાની. ડોક્યુમેન્ટેશન ઇઝ ધ ફર્સ્ટ થિંગ. બટ અગર એ રિફ્યુઝ કરે છે, તમે એમને સમજાવ્યું બી ખરા કે what will be the consequences, still they are refusing, so you cannot administer the blood products. Understood? But તમારે વસ્તુ ડોક્યુમેન્ટ કરવી પડશે. Yes. Okay. Next group is Islam. So Islam is Muslim faith. They believe in Allah, or Muslim faith wale. They believe in halal food. Halal means वो हलाल फॉलो करते हैं. सो नो अल्कोहल, दे विल नॉट कंज्यूम अल्कोहल. मीट स्लॉटर्ड रिलीजियसली. और वो कौन सा मीट खाते हैं? जो उनमें लाइक बलि चढ़ाते हैं, लाइक जो रिलीजियस पर्पस के हिसाब से स्लॉटर किया है वैसा मीट खाते हैं, बट दे डू नॉट कंज्यूम पोर्क. नो पोर्क. रमजान वो फॉलो करते हैं. व्हाट इज दैट? द फास्ट ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स. दिन में वो फास्टिंग करते हैं, रात में वो लोग खाते हैं. वुमन टिपिकली रिक्वायर अ फीमेल प्रोवाइडर फॉर देयर केयर. यस, दोनों जेंडर के लिए सेम है. अगर कोई इस्लाम कम्युनिटी की फीमेल एडमिट हुई है, सो उसको केयर कौन करेगा? ओनली फीमेल नर्स. मेल नर्स आप नहीं दे सकते. सिमिलरली अगर मेल पेशेंट एडमिट हुआ है फ्रॉम द इस्लाम कम्युनिटी, तो यू कैन नॉट अलोकेट अ फीमेल नर्स. उसके लिए मेल नर्स ही लगेगी. प्रेयर 5 times a day. दे आर आप कोई भी सिचुएशन होगी, दे विल नॉट स्किप देयर प्रेयर. वो प्रेयर स्किप नहीं करते, कहीं पे भी होंगे दे विल डू देयर प्रेयर. जो उनकी प्रेयर होती है वो दिन में 5 बार वो लोग करते हैं. मे इंटरप्रेट इलनेस एज अ विल ऑफ अल्लाह और अ टेस्ट ऑफ फेथ. वो क्या समझते हैं कि अगर उनको कोई बीमारी हुई है, सो दे विल इंटरप्रेट कि ये अल्लाह की इच्छा है इसलिए हमारे साथ हुआ है. एंड ऐसा समझते हैं कि अल्लाह हमारा फेथ का टेस्ट कर रहा है, लाइक दे आर टेस्टिंग अवर ट्रस्ट. सो मे प्रीफर ऑल्टरनेटिव थेरापी. सो अगर उनका परसेप्शन ऐसा है कि अल्लाह हमारा टेस्ट कर रहा है या अल्लाह की वजह से हुआ है, सो दे विल नॉट अंडरगो एनी इंटरवेंशंस. वो ऑल्टरनेटिव थेरापी प्रीफर करेंगे, मेडिकल थेरापी वो प्रीफर नहीं करेंगे. एंड ऑफ लाइफ केयर एंड डेथ में वो लोग क्या बिलीव करते हैं? सो मे वांट टू प्रिपेयर द बॉडी बाय वॉशिंग एंड रैपिंग इन व्हाइट क्लॉथ. फॉर एग्जांपल आपकी हॉस्पिटल में यू आर केयरिंग फॉर अ पेशेंट जो क्रिटिकली इल था और उसकी डेथ हो गई. सो एंड ऑफ लाइफ केयर कैसे करना है? सो आपको वो जो कम्युनिटी का जो पर्सन है, इस्लाम पेशेंट था और उसकी डेथ हो गई, सो उसके रिलेटिव्स क्या बोलेंगे? दे विल टेल यू कि वी वांट टू वॉश द बॉडी. बॉडी को नहलाएंगे वो, एंड व्हाइट क्लॉथ में उसको रैप करेंगे, और उस पर वो सेंटेड परफ्यूम इतर वो वैसा भी लगाते हैं. सो दे आर फॉलोइंग दिस रिचुअल्स. पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस आर डिस्करेज्ड.
जो इस्लाम कम्युनिटी वाले लोग होते हैं वो पोस्टमार्टम नहीं करवाते, बट कोई भी रीजन हो गया हो, बट दे वो लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि जैसी बॉडी अल्लाह ने दी है वैसी की सेम बॉडी सेम ऑर्गन्स के साथ वी वांट टू रिटर्न टू द मदर अर्थ। वो लोग बरी करते हैं, दे डू नॉट बर्न द पर्सन। सो वो लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि जैसे ही भगवान ने लाइक अल्लाह ने भेजा है वैसा ही सेम बॉडी हमें उनको रिटर्न करना है। सो वो पोस्टमार्टम, મેડમ यस, અમુક વખત આપણે એવિડન્સ માટે બી પોસ્ટમોર્ટમ કરીએ છીએ આમ પોલીસ કેસ ને એવું હોય તો એ ટાઈમે શું કરવાનું પછી? we have to ask their preference. This is the normal Islam community following, but we know every individual is different. So before doing any stereotyping judgment, we have to ask them. એમને પહેલા પૂછવાનું કે do you want to undergo a postmortem? Normally they discourage the postmortem examination. So directly discourage કરે છે એટલે directly cancel કરી દેવાનું એવું નહીં, પહેલા પૂછવાનું. અગર એવું કહે છે કે yes we want to undergo postmortem તો કરવાનું. અગર એવું કહે છે કે we don't want to undergo postmortem, so we cannot do that. Simple. Understood? And you have to Yes. document this thing that they are not willing to do the postmortem. So these are the points that you have to remember when you are caring for an Islam patient. Next is Hinduism. So Hindus practice Ayurvedic medicines which encompasses all aspects of life including diet, sleep, elimination and hygiene. जो हिंदू लोग होते हैं वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ज्यादा फोकस करते हैं और उसमें सब डाइट तो आयुर्वेदिक रिलेटेड होगा, स्लीपिंग पैटर्न्स भी आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग होगा, एलिमिनेशन पैटर्न एंड हाइजीन पैटर्न भी आयुर्वेदिक के अकॉर्डिंग ही वो लोग करेंगे. प्रीफर अ शावर नॉट अ बाथटब. हिंदूज शावर पर ज्यादा प्रीफर करते हैं, नॉट बाथटब. मोस्ट हिंदू आर लेक्टो वेजिटेरियंस. हिंदू कौन सा डाइट फॉलो करेंगे? लेक्टो वेजिटेरियन. लेक्टो वेजिटेरियन मीन्स दूध ने वो બધું ખાય. blood Yes. product, yes, yeah. milk products and vegetarian food but no eggs. अगर लेक्टो ओवो वेजिटेरियन है तो ઈંડા ખાય પણ માંસ ના ખાય. एग्स पण લે સાથે સાથે. lacto means milk, ovo means egg and vegetarians means vegetables, so they will avoid only meat. So most Hindus are lacto vegetarian. Means what are lacto vegetarians? So no eggs, dairy is okay, and some Hindus will also not eat, most will not eat meat. मीट भी वो लोग नहीं खाएंगे, स्पेशली बीफ तो बिल्कुल नहीं. फॉर एग्जाम्पल हिंदूज दे डू नॉट कंज्यूम मीट, कोई भी मीट नहीं खाते. बट अगर कुछ लोग ऐसे हैं कि मीट खाते हैं बट उसमें तो बीफ तो बिल्कुल नहीं खाएंगे. बीफ मीन्स कौन सा मीट? ખાય. यस, Cow. cow's meat. So they will not consume beef. Fasting usually means eating only pure food such as yogurt, fruit, but not expected of the Sikh. हिंदू लोग मतलब हिंदुइज्म में फास्टिंग वो लोग करते हैं और फास्टिंग के टाइम वो क्या खाएंगे? प्योर फूड खाएंगे, लाइक फ्रूट्स खाएंगे, दही खा सकते हैं. बट यस इट इज नॉट एक्सपेक्टेड ऑफ सिख. अगर कोई बीमार है, हिंदुइज्म कोई पेशेंट है who is Hindu and he is Sikh, so he is not allowed to do fasting. अगर सिख है तो उससे एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि वो भी फास्टिंग करे. So these are the key points that you have to remember while you are caring for a Hindu patient. Next group is Hispanic or Latino population. उसमें क्या ध्यान रखना है? They may refuse the pain medication. Just like दूसरी कौन सी कम्युनिटी थी जो पेन मेडिसिन रिफ्यूज कर रही थी? ક્રિશ્ચિયન સાયન્ટિસ્ટ. क्रिश्चियन साइंटिस्ट. यस, हाँ, तो हिस्पैनिक लैटिनो पॉपुलेशन भी पेन मेडिसिन रिफ्यूज कर सकती है. बट व्हाट इज द रीजन? द रैशनल इज डिफरेंट. They may refuse the pain medication and refer to endure pain as a part of their spiritual journey because they believe that pain is a form of punishment from God for the sins or test of faith. जो क्रिश्चियन साइंटिस्ट थे वो लोग क्या बिलीव करते थे? मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे थे? बिकॉज दे वांट कि हम स्पिरिचुअल और प्रेयर से ही ठीक हो जाएंगे. देयर इज नो नीड टू गिव अस मेडिकेशन. ये लोग क्या बिलीव करते हैं? ये लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि पेन सहन करना इज अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल जर्नी. अगर आप पेन सहन करोगे तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा. एंड क्यों हमें पेन दिया जा रहा है? सो एज अ पनिशमेंट. हमने कोई पाप किए हैं, सो दैट्स व्हाई गॉड इज गिविंग अस पनिशमेंट इन अ फॉर्म ऑफ पेन. और हमारा टेस्ट, हमारा जो ट्रस्ट है वो टेस्ट कर रहा है गॉड. सो दैट्स व्हाई दे आर रिफ्यूजिंग द पेन मेडिसिन. अंडरस्टूड?
नेक्स्ट इज एशियन अमेरिकन। एशियन अमेरिकन में क्या ध्यान रखना है? सो मे वैल्यू द एबिलिटी टू रिमेन स्टोइक वाइल इन पेन। यस, अगर वो पेन में होंगे सो वो लोग इतना लाइक एग्जैगरेट नहीं करेंगे कि या दे आर इन सो मच पेन, सो दे कैन रिमेन स्टोइक वाइल इन पेन, आर टिपिकल फैमिली ओरिएंटेड एंड इन्वॉल्व देयर एक्सटेंडेड फैमिली इन केयर। जो एशियन अमेरिकन होते हैं, मतलब कि दे बिलोंग्स टू एशिया, सारी जो एशियन कंट्रीज है वहां से है, बट नाउ दे आर लिविंग इन यूएसए। सो जो एशियन अमेरिकन है वो फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। अगर एक बीमार होगा ना तो उसको देखने के लिए 4-5 लोग आएंगे। दे आर टिपिकली फैमिली ओरिएंटेड, और पूरी फैमिली इन्वॉल्व होगी उसके केयर में। मे प्रीफर अ ग्रेटर फिजिकल डिस्टेंस फ्रॉम नर्स और अ प्रोवाइडर। यस, अगर कोई एशियन अमेरिकन पॉपुलेशन से है तो व्हेन द नर्स इज गिविंग केयर सो वो लोग डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। बहुत नजदीक से आप ऐसे उसको पेशेंट को बात नहीं कर सकते। यू हैव टू मेंटेन अ ग्रेट फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द पेशेंट एंड योरसेल्फ। प्रोलॉन्ग आई कांटेक्ट समटाइम्स व्यूड एज अ रूड। अगर ऐसे पेशेंट को आप बहुत लंबे टाइम से आई कांटेक्ट करोगे तो पेशेंट को रूड लगेगा। सो प्रोलॉन्ग आई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते आप एशियन अमेरिकन के साथ। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes or no? Yes. Next is Latino Americans. Latino Americans view of illness. वो illness को क्या मानते हैं? So a sign of weakness and punishment. जो लैटिनो अमेरिकन है वो बीमारी, अगर वो बीमार हो जाए तो ऐसा दिखाएंगे कि इट इज अ साइन ऑफ वीकनेस, आप कमजोर हो या फिर आपको पनिशमेंट दी गई है। एक्सटेंडेड फैमिली टिपिकल इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। यस, अगर पेशेंट को कुछ ऐसा हुआ प्रॉब्लम और डिसीजन मेकिंग करना है तो पूरी फैमिली इन्वॉल्व होगी। पेशेंट की वाइफ से भी पूछेगा पेशेंट, उसके फैमिली से, उसके सिबलिंग से, पूरी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली पूरी इन्वॉल्व होगी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मल्टीपल जनरेशन में विश टू बी देयर एट द हॉस्पिटल विद द क्लाइंट। यस, मल्टीपल जनरेशन, उसके पेरेंट्स, उसके चिल्ड्रन, उसके ग्रैंड चिल्ड्रन, सारे लोग हॉस्पिटल में होंगे। दे विश टू बी देयर इन द हॉस्पिटल। सो अगर वो ऐसा बोल रहे हैं कि वी वांट टू स्टे इन द हॉस्पिटल, सो व्हाट यू विल डू? हॉस्पिटल में तो एक ही जन अलाउड है, तो आप क्या करोगे? You have to tell them, okay, there are certain rules and regulations which we have to follow. We cannot allow all of you together with the patient, but for 5-10 minutes you can meet the patient. 5 से 10 मिनट तक आप साथ में पेशेंट से मिल सकते हो, बट रेगुलरली अगर पेशेंट के साथ बैठना है तो सिर्फ एक ही पर्सन बैठ सकता है। यू कैन टर्न बाय टर्न सीट विद द पेशेंट, बट ऑल ऑफ टुगेदर कैन नॉट सीट विद द पेशेंट। ऐसे आपको पोलाइटली समझाना है, एक बार मिलने देना है सारे लोगों को साथ में 5 से 10 मिनट तक। देन यू हैव टू टेल देम कि यू हैव टू लीव द पेशेंट एंड ओनली वन कैन स्टे विद पेशेंट। आफ्टर 1 hour यू कैन स्विच, बट टिल दैट यू कैन नॉट, ऑल टुगेदर कैन नॉट स्टे विद द पेशेंट। ऐसा आपको पोलाइटली समझाना होगा। अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, ma'am. Okay, so let's do one practice question. Which of the following meals would you offer to your client who practices Orthodox Judaism? Judaism. So options are, question पता चला, एक पेशेंट है जो ऑर्थोडॉक्स जुडाइज्म फॉलो करता है, प्रैक्टिस उसकी फॉलो करता है। फॉलो करता है मतलब ही इज स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द ऑर्थोडॉक्स जुडाइज्म कल्चर। सो कौन सी मील आप उस पेशेंट को दोगे? सो ऑप्शन ए इज चिकन पार्मेजान एंड स्पगेटी, chili con carne topped with queso fresco, and a club sandwich with low sodium ham and cheese. And fourth option is a cottage cheese salad with fresh food. कौन सा आप दोगे? आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। Okay, someone is saying C. You have to give me the rationale for your answers also. Online students, I think D. D or B? D. Okay, D. Other students? There are 15 students. Chalo, tell me.
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, चलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक ने ही आंसर दिया है। इट्स अ मीट। ओके, ए What is C color with fresh D? What is ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू देयर? प्लीज एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। अगर वो रॉन्ग होगा देन आई एम नॉट गोना किल यू, आई एम नॉट गोना पनिश यू आल्सो। प्लीज गिव इट अ ट्राई। Yes, which answer someone was speaking? Yes, please repeat. You are not audible. A. A? Yes, ma'am. Okay, A. Then another students. D. Okay, B. No one is selecting option B. We have no options, no votes for B option. ડી યા તો ડી માંથી કોઈ એક આવે કારણ કે બંને વેજ છે ને આ લોકો નોનવેજ જોડે કોઈ પ્રોડક્ટ લેતા નહીં બીજું મિલ્કી પ્રોડક્ટ Did we studied about Orthodox Judaism? Orthodox Judaism के बारे में हमने स्टडी किया। हाँ सबसे पहले आया था ना ऑर्थोडॉक्स ज्यूज। That was Orthodox Jewish people. Jewish. So these are same. Orthodox Judaism and Jewish people are same. ऑर्थोडॉक्स तो है तो सही में Yes or no? Same or not? Any guesses? Random guesses? दोनों सेम है या अलग अलग है? What are your opinions? I think different. Both are same. Orthodox Jewish people likha ho, then you have to say think that they are Orthodox Jewish, and Orthodox Judaism likha ho, then they are also Orthodox Jewish. There are different names of the same population. Just like हमने इस्लाम पढ़ा, इस्लाम की जगह मुस्लिम लिखा होता है, तो both are the same thing. So that is why you have to think कि दोनों same ही है. So अगर Orthodox Judaism है, so which diet they will follow? बी और डी Which diet they will B. follow? बी Which diet they will follow? Tell me answer this. Kosher diet. Kosher. Kosher diet. So kosher diet में आपको क्या ध्यान रखना है? No pork. No pork first of all. So पर कोई pork वाला है? Pork वाला हो तो directly cancel कर दो. कोई भी है यहाँ पर pork? No. So no need to cancel. फिर second point क्या था? No selfish. No selfish. Yes. And yes, they will avoid dairy एंड मीट टूगेदर. डेयरी और मीट दोनों साथ में नहीं लेंगे. सो इसमें से कौन से फूड्स ऐसे हैं जिसमें शेलफिश के बारे में? पॉर्क तो है ही नहीं, तो चलो ये तो अंदर है ही नहीं. शेलफिश कोई भी प्रोडक्ट है जिसमें फिश हो? ये बात है ना बिल्कुल ये बात सेफ बात ही एक भी ऑप्शन में शेलफिश के अंदर कोई फूड है? इज देयर एनी फूड रिलेटेड टू शेलफिश इन ABCD? Yes or no? No. Yes or no? No, there is no food. They are talking about shellfish. तो हमें एक पॉइंट ध्यान में रखना है, डेयरी एंड मीट. इसमें से कौन से फूड्स है जो डेयरी और मीट कंबाइन है? चिकन पार्मेजान एंड स्पगेटी, इसमें डेयरी और मीट कंबाइन है? यस और नो? ओके,
ओके, वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन. जिन लोगों ने ए ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन सिलेक्ट किया है, टेल मी द रैशनल फर्स्ट, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द करेक्ट आंसर. पहले मुझे ये बताओ कि ए क्यों सिलेक्ट किया. दोज हु हैव सिलेक्टेड ए, व्हाई दे हैव सिलेक्टेड ए. चलो, why you have selected A? You should know the rational. NCLEX is all about giving the rational. आपको rational पता होना चाहिए कि आप ये क्यों कर रहे हो. चलो, there will be no time for revision all. फिर रिवीजन के लिए टाइम नहीं बचेगा. अरे आंसर करो. Why? Wrong होगा so I'm not gonna kill you. Please answer me. Why you have selected A option? क्या सोचकर A सिलेक्ट किया? Just I'm only want the reason. A, C और D तीनों वाले rational रेडी रखो. Why you have selected A option? A option क्यों सिलेक्ट किया आप लोगों ने? કેમ કે સ્પેગેટી છે એ ડેરી પ્રોડક્ટ નથી, એ તો વીટનું હોય છે એટલે. Yes, it's a kind of noodle. Okay, and chicken parmesan. Okay, so chicken parmesan and spaghetti, there is no any combination of dairy product and meat. So that's why you have selected A option. दो लोग ने A option select किया, दोनों का same reason है. Online students, I am asking something. दोनों का reason same है? Yes or no? Okay, I'm assuming yes. Now, why you have selected C option? Why you have selected? Okay, so you have switched to option D. Okay, so why you have selected option D? जो लोगों ने option D select किया है, why D? ચીઝ છે તો ડેરી પ્રોડક્ટ છે, ફ્રેશ ફ્રૂટ જોડે તો લઈ શકાય, મીટ જોડે Okay, ના so લઈ શકાય. हाँ, so there is also, so दोनों option में like how is that possible कि दो option ऐसे हो जिसमें dairy product and meat combination ना हो? You have to select only one. कोई दूसरा स्टूडेंट है जिसको कुछ ओपिनियन कुछ शेयर करना हो? એ દો ઓપ્શન में ही कंफ्यूजन. Okay, so let me clear you. So first we know कि they do not consume dairy product and meat together. So if we see फर्स्ट ऑप्शन में देखिए चिकन पार्मेजान. पार्मेजान डू यू नो? कोई पता है क्या पार्मेजान क्या है? गूगल इट. चलो, व्हाट इज पार्मेजान? चीज. हाँ, सो आपको पता होगा देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज. चेडार चीज, पार्मेजान चीज, प्रोसेस चीज, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज होते हैं. सो पार्मेजान इज अ चीज. सो चीज क्या है? डेयरी प्रोडक्ट है या नहीं है? डेयरी It is a dairy product. Paneer, cheese, yogurt, milk, butter, all this considered as a dairy product. So chicken is a meat and parmesan is a dairy product. Can we give this meal to the patient? Spaghetti is a noodle, but this is a combination of milk and dairy, meat and dairy. So we cannot give this to the patient. So first option is cancelled. Next is chill con carne topped with queso fresco. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कम्प्लीटली न्यू फॉर यू. अगर आप एग्जाम में हो यहाँ पर तो आप गूगल कर लोगे, बट एग्जाम में आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन आ गया तो यू कैन नॉट गूगल इट. ये क्या है वो तो आपको पता नहीं चलेगा. सो ड्यू टू दैट रीजन फर्स्ट उसको साइड में रखना है, बिकॉज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस. सो यू हैव टू कीप दिस असाइड. लास्ट में उसको देखना है. सारे ऑप्शंस देख लेने के बाद कुछ भी नहीं बचता देन गो फॉर दिस, पर तब तक उसको साइड पे रखो. सी ऑप्शन पर जाते हैं. सी ऑप्शन में क्या है? अ क्लब सैंडविच मींस सिंपल सैंडविच विथ लो सोडियम, हैम एंड चीज. व्हाट इज हैम? इट इज अ प्रोसेस मीट. ऐसे लाइक डिस्क जैसा होता है, गोल गोल कटिंग्स करके कटलेट जैसा होता है. सो सैंडविच है. सैंडविच में सोडियम कम है, लाइक सॉल्ट कम डाला है, बट सैंडविच में
हैम है एंड चीज भी है. सो हैम इज अ मीट एंड चीज इज अ डेयरी प्रोडक्ट. डेयरी प्रोडक्ट. यस. सो पेशेंट को आप सैंडविच दे रहे हो, वो सैंडविच में नमक कम है, सैंडविच में हैम है, वेजिटेबल्स तो होंगे बट हैम भी है एंड चीज भी है. सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेयरी एंड मीट. सो अगेन दिस इज अवर रॉन्ग आंसर, वो भी हम नहीं दे सकते. लास्ट इज कॉटेज चीज सैलड विथ फ्रेश फ्रूट. कॉटेज चीज इज अनदर टाइप ऑफ चीज. कॉटेज चीज, पार्मेजान चीज, चेडार चीज. तो कॉटेज चीज दे रहे हो, उसका सलाद with fresh fruits. So here there is any combination of meat and dairy? No. Yes or no? यहाँ पर कोई combination है? No, there No. is no any combination of meat and dairy. That's why this is our correct. अगर यहाँ पर भी combination होता, meat and dairy होता, तो हमारा ये आंसर ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता. तो आपके पास कौन सा ऑप्शन बचता? बी बचता. तो आपको पता भी नहीं है कि ये क्या है, स्टिल यू सिलेक्टेड द करेक्ट आंसर. व्हाई? ओनली यूजिंग द एलिमिनेशन स्ट्रेटजी. अगर कोई आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको पता नहीं है कि व्हाट इज दिस, गो फॉर द एलिमिनेशन स्ट्रेटजी. सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं. अगर ये आ सकता है तो उसको टिक करना है, नहीं आ सकता है तो अब साइड पर करना है. सेकंड, हमें पता ही नहीं था कि ये क्या है, सो वी हैव स्किप दिस. वी मूव टू थर्ड. थर्ड में हमें पता चला कि ये आंसर नहीं है. फोर्थ पर गए, अगर ये आंसर नहीं होता तो एक ही बचता, एक तो आंसर होगा ही, सो हमने डायरेक्टली सेकंड कर दिया. नाउ लेट मी टेल यू द मीनिंग. चिल कॉर्न कार्नी. कॉर्न कार्नी इज अ टाइप ऑफ मीट एंड क्यूसी फ्रेस्को इज अ टाइप ऑफ चीज. So there is a meat and combination of cheese. So we cannot give this to the patient. आपको एंक्लेक्स में न्यूट्रिशन में सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि दे फूड आइटम्स यू आर सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं कि जो आप फर्स्ट टाइम देखोगे कि व्हाट इज दिस फूड. सो यू हैव टू ऑलवेज गो विद द एलिमिनेशन स्ट्रेटजी. एंक्लेक्स क्लियर करने में एलिमिनेशन स्ट्रेटजी ही यूज करनी है. आई हैव यूज्ड एलिमिनेशन स्ट्रेटजीज इन ऑल 85 क्वेश्चन. मैंने सारे 85 क्वेश्चन में एलिमिनेशन स्ट्रेटजी ही यूज की थी. दिस इज द बेस्ट वे कि आप करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर पाओगे. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. सो दिस इज अ सैंपल क्वेश्चन कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको पॉपुलेशन में से, पॉपुलेशन एंड न्यूट्रिशन कंबाइन करके. सो करेक्ट आंसर इज डी. Why the D? That they do not consume dairy and meat in the same meal. That's why we have selected option D. So let's do a quick revision of our today's class. I'm just Ma'am? yes. મારા ઘરે એક ફેમિલી ફંક્શન છે તો આજે ક્લાસ થોડું જલ્દી leave કરું. Yes, okay. You can leave. Thank you, ma'am. Yeah, okay. So we have seen single parents क्या problem face करते हैं वो हमने देखा. There is no any specific consideration for single parents. Foster children के बारे में पढ़ा. Foster children means ऐसे children जिसके parents और guardians नहीं है. जो उसके हेल्थ केयर कंसिडरेशन में आपको क्या ध्यान रखना है वो हमने पढ़ा. ऐसे पेशेंट्स के बारे में कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स देखी जो मेंटली डिसेबल्ड है, मेंटली अनहेल्दी है. उन पेशेंट को केयर करते वक्त आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, उसकी हेल्थ केयर कंसिडरेशंस देखी. ओल्डर एडल्ट्स के बारे में पढ़ा. ओल्डर एडल्ट्स में कॉमन है निग्लेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. उनमें कौन से हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, दैट वी हैव स्टडीड फ्रॉम द बॉक्स 5.5. देन मिलिट्री वेटरन्स मतलब वो लोग जो अभी सर्व नहीं कर रहे हैं नेशन को, तो उनमें कौन से प्रॉब्लम्स ज्यादा है देखने को मिलेंगे वो हमने स्टडी किए. एंड हेल्थ केयर कंसिडरेशंस हमें क्या ध्यान में रखनी है व्हाइल यू आर केयरिंग फॉर मिलिट्री वेटरन्स. प्रिजनर्स के बारे में पढ़ा. प्रिजनर्स में रेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भी प्रिजन में रहते हैं उन लोगों को कौन सी हेल्थ कंडीशंस के रिस्क ज्यादा है, टीबी, एसटीआई एंड अदर इन्फेक्शियस एंड कम्युनिकेबल डिजीजेस. उनमें कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स है वो हमने स्टडी किए और उनकी हेल्थ केयर कंसिडरेशंस क्या ध्यान रखनी है. फर्स्ट, दे कैन नॉट कम आउट ऑफ द प्रिजन. सो हमें प्रिजन में ही रह के, करेक्शनल फैसिलिटी में रह के ही उनकी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है. उनकी हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है. इमिग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज के बारे में हमने पढ़ा कि वो लोग कौन से कॉमन प्रॉब्लम्स फेस करते हैं रिलेटेड टू हेल्थ एंड उनको अगर केयर प्रोवाइड करनी है सो कैसी हेल्थ केयर कंसिडरेशंस यू हैव टू कीप इन माइंड. देन क्रोनिक इलनेसेस वाले पेशेंट है उनमें क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है वो हमने पढ़ा कि कॉमन एक क्रोनिक प्रॉब्लम होगी तो उसके साथ मल्टीपल होगी ही. सो ये कौन से प्रॉब्लम्स है वो पढ़ा. उनको केयर कैसे करनी है, कैसे कंसिडरेशंस हमें दिमाग में रख के केयर करनी है वो हमने स्टडी किया. देन हमने डिफरेंट एक्स्ट्रा पॉपुलेशन स्टडी किया लाइक
ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश पीपल क्या फॉलो करते हैं, उनकी क्या बिलीफ्स है, जियोवाज विटनेस क्या फॉलो करते हैं, क्रिश्चियन साइंटिस्ट क्या फॉलो करेंगे, इस्लाम में वो लोग क्या फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म में क्या फॉलो करते हैं वो लोग, हिस्पैनिक लैटिनो पॉपुलेशन में वो लोग क्या फॉलो करेंगे, एशियन अमेरिकन, लैटिनो अमेरिकन, दिस आर द डिफरेंट पॉपुलेशंस, उनके कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए. एनी डाउट इन दिस? નો મેમ મેડમ એ પીપીટી મોકલજો ને લાસ્ટમાં તે તમે પણ Okay, I'll share this. Okay, any other doubts? નો મેમ Okay, see you directly on Monday. And yes, I have an important announcement, but there are only 8 students. Be ready for the test on Saturday and Sunday, that is 15th and 16th March. For FON, whole FON will be there in this test. Okay.